को स्टेज पे बुलाएं. बट फर्स्टली आई वुड लव टू कॉल द पर्सनैलिटी जिनके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी कि शी इज़ अ हेड ऑफ रिसर्च, द वन अ लेडी, बट जो कहते हैं ना कि एक नारी सब पे भारी, तो आई थिंक शी विल गोइंग टू बी द वन. आई वुड लव टू कॉल विनीता शर्मा मैम ऑन स्टेज. And sir, I will request you to felicitate with the bouquet to her. Please एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए सभी की. विनीता मैम is a head of research at Narolia. A brief about मैम के बारे में बताना चाहूँगा. Please take a seat, please, ma'am. It's a pleasure for us to having you over here. Please introduce. Yeah, sure. So firstly, I would love to take some of the deep details of ma'am, but पहले मैं उनसे थोड़ा सा एक इंटरेक्ट करना चाहूँगी बिकॉज जैसे ही वो यहाँ पर आए, उनका मैम आपके प्रेजेंस से आई थिंक है चार चांद लग जाते हैं. देन आप सबका ध्यान सबसे पहले इधर गेट की तरफ गया क्योंकि समवन इज जस्ट गेटिंग एंटर ओवर हियर. तो पहले तो मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है एंड ह्यूज वेलकम ऑन दिस स्पेशल डे. और प्लीज़ सब जने एक बार जोरदार तालियाँ बजा दीजिएगा बिकॉज दी वन एंड ओनली. मैम पहले तो छोटा सा एक जर्नी भी पूछना चाहेंगे, जितने लोग यहाँ आएंगे वो कैसे सर से जुड़े, कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ, सर उनसे कैसे जुड़े. मैम पहले आपके तो वर्ड सुनना चाहेंगे सब. So thank you everybody, and it is really a pleasure, seeing so many people and that enthusiasm, because as you grow in stock markets, you just don't have to miss that thread. That enthusiasm needs to be there, and it's such a pleasure, and especially communities from different parts of the country and of a very different mindset. So there is, Indians, I would say there is an entrepreneurship in all of us, deep within, blood में है, DNA में कहीं ना कहीं है. And then, that thing, when you're doing a profession, you're doing something else, like sir said, he's a doctor, and everybody is somebody in real estate. But then, the stock market gives that kick to that DNA, which runs within us. And that's the reason we are able to, so well correlate with the stock market, right? And I think that somewhere that thread had to, get in touch with Strategic Alpha. I'm really honored to be here. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. Please have a seat. And I'd love to call the next person, Vipin sir, on stage. Please, एक बार जोरदार तालियों के साथ. So, this is like a love from our side, so you have to accept this. Please, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. So please have a seat. Ravikant ji, I would love to call you on stage, Mr. Ravikant ji. All right, sir is coming over here. Sir, please, I would love to call you on stage. Alright, please एक बार जोरदार तालियां सबकी तरफ से होना चाहिए for रविकांत सर. सर यहाँ पे जो भी मेंबर्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं उनके हमने दो वर्ड्स सर से मैं ऑलरेडी हम सुन चुके हैं, उनकी बातें और उनकी सारी चीज़ें. बट हाँ, कुछ वर्ड आपकी तरफ से भी, कैसे आप हमसे जुड़े, द कन्वेंशन क्लब कैसे आप जुड़े, और या सर आपसे कैसे जुड़े, प्लीज़ आपकी स्टोरी थोड़ी बताएं. Okay, so I know Syok Bhai for quite a long time, and he has been an excellent teacher. Primarily, our first connect was through MMB board, right? Or Money control. Yes. 2016. 14, sir. 15, 14. Yes. बहुत early, way early. So, and yeah, it has been a good journey. Personally, I'm a BTech from NIT Calicut. I have worked in both public sector and private sector. I am a CFA charter holder. I have done my FRM, and I have done my MA in economics from JNU. Thank you so much. एक बार जोरदार तालियां. And I love to call the CEO of Strategic Alpha. I love to call Himanshu sir on stage. Please एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए. The youngest and the most active person. So,
आपका इंट्रो तो ज़रूरत ही नहीं है, इट्स ऑलरेडी डन. सो सर, आई विल लव टू कॉल यू ओवर हियर just to take a sit, and everyone, this is the time. Just keep your pen up with you and ready to write it down whatsoever is important for you. Actually हर चीज़ यहाँ पे जो बोले जाने वाली सभी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बट स्टिल राइट इट डाउन, क्योंकि कहते हैं ना हम सुन के भूल जाते हैं पर लिखा हुआ हमेशा याद रहता है. सो माइक इज़ ऑल ओवर टू यू सर. हेलो. Good evening to you all, and it's my good fortune and like वॉल्यूम बढ़. no, it's working, sir. So good evening all, and it's my good fortune, pleasure, and live definition of serendipity to share this dais with you guys, and most importantly Vipin sir and Vinita Sharma ma'am, because of all the traits which are key to like whatever you define success as in money markets, equity markets, is longevity, and you guys have done that. Vipin sir, multiple cycles, ma'am, you too, and like all I wish that I too somehow get that guru mantra from you guys, because I am full time into this. I'm with Suyog sir, and like I mean, of all the investors I have seen and observed, that longevity, that word, it somehow which resonates with me. That how to survive today in order to flourish another day. So that's the key, and with that we'll start. Like if you guys allow, I would like to ask some questions. Okay. So. Okay. Yeah. Huh. So first question to Vipin sir, like why stock markets as a career choice? Because back in the day, like the number of graduates, postgraduates in India was pretty low. When you completed your education, you could have gone to any field and far more lucrative, prestigious fields. And I'm like I was just curious, like why? तो मैंने आपको पहले भी अपनी टॉक में बताया AC कि हम तो गर्मी से एसी में बचने के लिए गए थे. तो बाय चांस समटाइम्स सम यू कैरियर्स यू प्लान एंड समटाइम्स कैरियर्स पुल योरसेल्फ टुवर्ड देम, राइट. तो ये ऐसा था कि ये कैरियर ने पुल किया, और आई फाउंड इट प्रीटी इंटरेस्टिंग फ्रॉम अदर गाइज दैट सब कोई मार्केटिंग कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग में कुछ करके कर रहा है, or somehow that kind of seemed boring at that stage also. It was like stock market was kind of new as a पूरे संसार को न्यू थी. हमारे आसपास तो जो थे, हमारी पूरी मतलब लैटरल नेटवर्क में तो कोई स्टॉक मार्केट की बात ही नहीं करता था. तो दैट वे जो नोवेलिटी फैक्टर भी था. तो व्हेन चांस ऑफर्ड वी ग्रैब्ड इट बाय बोथ हैंड्स, और वी वर पुश्ड टुवर्ड्स दैट, बट वी स्टार्टेड एंजॉयिंग इट. आई थिंक द बेसिक पर्पस, द बेसिक the building block is the enjoyment in what you do. That will last you through many cycles. But if you lose enthusiasm and enjoyment in what you're doing, वो फिर क्या है कि अपने सर के ऊपर बाद में भारी पड़ता है. और एंथू है, इंजॉय करो तो आप नई नई चीज़ें सीखते रहते हो, लर्निंग करते रहते हो, बिकॉज उसमें भी मज़ा आ रहा होता है, नए लोगों से मिलते रहते हो, कोई कुछ जानना है. जैसे एक जोक है ना स्टॉक मार्केट के बारे में, कि कोई भी पार्टी होती है जब स्टॉक मार्केट वालों की, बम्बई से निकला हुआ जोक है, तो सबसे पहले सारे क्या पूछते हैं, और क्या ध्यान है, मतलब तो वो एक आने वाले क्षण के बारे में सोचना कि क्या होने वाला है स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से, वो एंथुसियाज्म चलता रहता है. दैट इज़ अ की फैक्टर दैट एक्चुअली लीड्स टू लॉन्जेविटी, जो आपने बोला. Yes, और दैट्स हाउ आई kept continuing with this career, and I'm enjoying it. So basically inquisitivity and eagerness to learn got you Absolutely. into this. और स्टॉक मार्केट में ही मैंने कई कैरियर्स को स्विच ओवर किया है. मैं कंप्लायंस गाय भी रहा हूँ, आई हैव बीन अ सेल्स गाय ऑल्सो, फिर कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग. स्टॉक मार्केट मीन्स एसेट ट्रेडिंग,
related to which had underlying stock market, उसमें भी हमारी बड़ी अच्छी valuations हो गई थी. राकेश जी how invested. tough was, sir, like, to keep shuffling between different roles? Because these No, are I think- completely different verticals. I think observe the change very keenly that is happening. चाहे वो टेक्नोलॉजी की साइड हो, चाहे वो पीपल ड्रिवन हो, नए स्टैट्यूट्स रेगुलेशंस आ रही हों, इनको बड़ी क्लीनली ऑब्जर्व करना है और वहाँ पे अपने आप को आपको सिस्टम में डालना है. जैसे आपने क्वांट का एग्जांपल लिया, राइट, फ्यू ईयर्स बैक, 10 years back, आई थिंक अ डिकेड बैक व्हेन संदीप टंडन स्टार्टेड, क्वांट मतलब कितने लोग कर रहे थे. दैट पर्सपेक्टिव लाना कि आने वाले टाइम में क्वांट होने वाला है, उस चेंज से ग्रैपल करना, स्टार्ट करना. कैरियर्स ये चीज़ें ऑफर करती हैं. एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर सब फील्ड्स, ग्रोइंग सब फील्ड्स हैं. आजकल एल्गो भी कितना पॉपुलर हो चुका है. अब इनके अंदर भी नीचे आगे कई करियर्स आते रहेंगे. सो दैट इज़ अ थिंग मैन. Correct. So, yeah. So, ma'am, Vinita ma'am, can I ask you the same question? What got you into equity research and stock markets? So actually quite similar in the sense that I had not chosen this profession. I just qualified my chartered accountancy and I was just like any other, person. I was just thinking of where to join. I had not that much a very big career plan or anything in my mind. Yeah, but I wanted to do something which I would like doing. And somehow, I was placed with Narnolia Financial. But then, I can share what kept me going in this market because, once you get married, then you shift places. So for a lady, as, it becomes very challenging being a research head. And, there are all the things in your head. So it was a very challenging kind of a thing for me. But I think that is the thing which kept me going. In the stock market, there is not a single day when you're not learning. And that, the moment in a year or two you start feeling that, yes, I know. Third day you have a lesson from the market. You learn, ki acha no, there is still a way to go, right? So in every industry, like we have been, researching on so many industries. You talk about the new age companies, you talk about the old age cement companies, industrials, Cummins, ABB, whatever companies you are, looking at in very detail. So you understand that there is some kind of a monotony which you will attain after a certain period. So if you don't like industrial, shift to new age companies. If you don't like new age, you shift to cement company. That is what we can do. We have that liberty, right? As an analyst, you don't like cement, you start seeing a technology company. And that was a lever that kept me going. The urge to learn the business cycles, how they are moving. And every day there is a new clue that you are getting in the market. And I think that's phenomenal. Otherwise, if I would have been in a different or very monotonous work, I would have, I think, left it long back. That's my story, I feel. I So don't know how many of you resonate with me. The diversity and dynamism Yeah. basically. And kept the you learning, going. Yeah. particularly because you just need to read and, you are in your own world. There is some kind of, intoxicity in your mind, especially when you are into this field, right? So that keeps you going, I guess. So, Vinita ma'am, since you emphasize upon that woman part, so do you see, participation in equity markets as some aspect of women empowerment which women should do? I would say things are very different now. I Yeah. mean, there is no venue constraints. There is no constraint as of now, and I don't see any line of difference into career between a man and a woman. I really don't feel that. Maybe because I was brought up in Narnolia in that way. Nice. Because there is no, I was given the full freedom to understand and do my business my way. So I didn't actually felt that there is a gap between a man and a woman which we need to empower. So it all depends on the woman herself, how she projects. The world will take you how you take yourself. So I don't think there is a question of, women empowerment. There is already there. You need to understand it and get it on the table.
So That's like what we I can feel. say that Narnolia has been ahead of the curve in this regard. Thank you so much. I think whomsoever is sitting over here, Yeah. the commonality in all the people is passion. Yeah. So whether it comes to ma'am, Absolutely. Vipin sir, CEO, so the More thing I want to say about Vinita ji and Narnolia in general. By the way, two of my colleagues are sitting there at the back, Amit Kishorpuri and Yogesh ji. In Narnolia, we are one of the, in fact, the best fund across all equity asset classes in India. Okay, as a RIA. So you can go to websites and the top selling funds at Motilal Oswal, IFL. And Vinita ji has stuck to company ever since she started her career in Narnolia. Very nice. So speaks both about Narnolia as well as Vinita, you know. So that's the kind of careers that Narnolia also offers. So, ma'am, another follow-up Yeah, question, yeah, since please. you are an equity research analyst. So, can you define what is margin of safety, like in investment, in your words? Yeah, since we are value pickers, as in we believe in value investment, not value pickers, I would say. So we are the ones, you know, at Narnolia, we bring up core buy and hold companies, wherein we built up a investment thesis as to why we are liking that stock. So when you talk about margin of safety, the normal sense goes like, you know, there has to be a PE band or a valuation range, let it be PE or a price to book or Any metric. EV upon EBITDA or whatsoever. There has to be a range, and when it goes above the range, you need to sell. So that is a normal understanding for margin of safety. But to us, what we believe is, you know, because we have seen that that range is normally, many times it's very broad. So you have a range from 14 to 25, right? So that's a very broad range. Secondly, these ranges of any valuation range, they keep shifting. So there is no particular, you have seen the commodity cycles, you have seen consumption, companies. The range shifts. The range is never the same. So you might be thinking that you are at the end of the valuation, the high side of it. Maybe you are sitting at the low side of it because the range might shift. So to our mind, you know, it was a very difficult situation for us because, you know, we have seen those range shifts in many companies. So what we defined as a margin of safety is that investment thesis you have in mind. So once you locate a company that this is a company I want to invest in, you have you built up an investment thesis as to why do you want to own this company. And when you see that things are not happening in the way you had thought it to happen, your investment thesis will guide you to the margin of safety. So once you think that okay, मैंने ये company बहुत simple reason से for instance margin बढ़ने की वजह से लिया था, and you are seeing that for the past 2-3 years or quarters or whatever kind of investment horizon you have, it's not moving along with your understanding. You define a margin of safety and you just come out of it. So I think as fundamental stock pickers, that is what range we have in our mind. Okay. So, Suyog bhai, margin of safety is also your favorite topic. So, would you like to throw some light on that? See, the way I look at margin of safety is कि भाई, in simple terms, I'll not use many jargons and all because first of all, margin of safety can be only applied in a stage where the businesses can be understood very well, because you cannot apply margin of safety well if you don't understand that business. Understanding that business is very much important. That is what I call as circle of competence. Coming back to that topic again. Once you define that, then what is margin of safety? Margin of safety is like because we are a deep value investor. So unless and until you buy a 100 rupee note at 25-30 rupees, you won't be getting that ultra high level of margin of safety. Because margin of safety, what happens is whenever you own something at a high level of margin of safety, your permanent loss of capital is avoided. That is how I look for. Like if I want to give you one of the example is like Bombay Stock Exchange, the case, and let me just share you, there is no recommendation to what I am saying here. I've just shared this case as a case study. I know. And Bombay Stock Exchange, it got listed at 600 rupees.
it kept on sliding down. 1993, if you see Bombay Stock Exchange had a 100% market share. But post Harshad Mehta's KM and launch of NSE, today, fast forward today, when I was talking about this case in 2019, 2020, the whole business, today in 2019-20, NSE had like 95% market share of India of all traded volumes, and 5% market share was owned by BSE. The whole world was of the view that NSE will become a monopoly. But ultimately Competition Commission of India won't let that happen. So Bombay Stock Exchange kept on sliding down because there were perception issues. Because price changes the perception for many, even for the fund managers. We have seen that. Bhav Bhagwan che, price changes the perception. And stock kept on sliding down because the whole street thought that BSE is losing market share and all. But ultimately it came to a point at a stage where it got listed at 12,000 crore market cap, I think. It came down to a market cap to as low as 2,700 or 800 crore. At that point of time, at 2,700, 800 crore, the cash on balance sheet plus Mumbai ka building ka valuation plus stake in CDSL put together 3,300 crores. So, इसमें Bombay Stock Exchange में ultimately it is a 150-year-old business. Correct. So when I was seeing there, I was seeing कि भाई business कैसे grow होगा, I don't know. When I was looking at that opportunity, because now you can sense the clean source of margin of safety. How can you lose money? Debt-free company, cash-rich. How can you lose money in a cash-rich company, debt-free company, 150-year-old? 150 साल चला है तो कम से कम 5 साल चलेगा, ये मेरा थॉट प्रोसेस था. Yes, sir. So there is no risk of permanent capital loss. That is where I saw high level of margin of safety, because even after the liquidation value was higher than the market cap. So even if the company gets liquidated, I would have got my whole money. So that tells you about margin of safety. And what happened next? So margin of safety is just to tell you that your capital is protected. But at one stage, so it doesn't tell you about the future. It tells you that your capital is protected. Now what happened next? I never knew that COVID is going to happen and 8 crore new demat accounts is going to open. My thought process was simple. If you are running a car, for a car to run from 40 km per hour to 100 km per hour, you can accelerate very easily. For a car to go from 150 to 180, it is very difficult because acceleration happens slow. So same mental model I applied that on Bombay Stock Exchange. NSE to go from 95 to 100, it is very difficult. Competition Commission of India won't let that happen. BSE had 5% market share. Can it grow from 5% market share to 10% market share? I was looking at that. Okay. BSE had invested into Gift City. Gift City was a ghost city earlier. Today it has came to life. So that was an investment for future. So I was seeing some from future, but I was not clear. It is best to be in a situation where you know the downside well, and when you don't know the upside well. Okay. That is the best stage to be in, because if you don't know, after researching all this, then you can understand it is a 1:5 or 1:10x kind of a risk reward issue. So ultimately COVID happened, 8 crore demat accounts got opened, cash generated was huge, the profitability went up 8x, stock went up 15x. Right. So that gives you a source of margin of safety. So this is how I look at margin of safety. This is just one case I told, but many such cases are available on our blog. Just go through my case study, just note it down. I was told about precision camshaft. If you want to understand margin of safety, there is one blog which I have written on margin of safety. It is available on blog. Just read that. And after that, there is case studies. One is precision camshaft. Just go through that case study. Second, BSE, once again, you can go through that case study. Third, I think Apex Frozen Foods, which you had researched, Ravikant. So Apex Frozen Food, that is a case of margin of safety. Few days back, we posted some cases like Bajaj Consumer Care. That is a case of margin of safety. You can study those cases. Yes. Nothing as a recommendation per se. Please don't take it as a recommendation. Thanks, Yogbai, for a Thank you. very detailed answer. So, one spectrum of this investing journey is rosy profits and the promises which it holds. But the other spectrum is where investors are left, beaten, broken and bruised.
And Vipin sir, you have seen multiple cycles. Can you throw some light that how today's investors can prepare themselves for any loss? Because we all know that psychological impact of loss is way more severe than that of profit. So how to prepare oneself for this kind of a situation? I think what Syog said very pertinent. As long as you don't understand business, right? This all talking about margin of safety, valuation is meaningless, right? And once you know something very well, you can decide its direction also naturally, right? And then obviously, what happens is everything is relative, by the way. Even valuations are relative. कहाँ खड़े हो, कहाँ पहुँच गए हो, right? कहाँ जाना है, तो उसमें ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं कि आपको पता है कि हाउ मच कैपिटल टू टेक आउट, हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड, 10 स्टॉक में किया आपको, डी रिस्क कैसे करना है. एक कैपिटल, जनरली हर कैपिटल का शॉर्ट नहीं आ सकता. आपकी 10 फाइंड्स होंगी, 10 में से इवन आप सर्कल ऑफ वैल्यूएशन देख भी लेंगे कि उसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, फिर भी पता नहीं वो कब चलेंगे, राइट? तो डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए कहते हैं. जब डाइवर्सिफिकेशन है तो आपको डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ क्वेश्चन बनाना है अपने कैपिटल प्रॉफिट्स का भी, राइट? दैट कीप्स यू सेफ. इन अगर सपोज आपको लगता है कि 20% मार्केट यहाँ से गिर सकती है, राइट? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप उस कोरिलेशन से कितने कैश पे बैठना है आफ्टर सच ए बुल रन, दैट आर योर पॉकेट्स दैट आर गोइंग टू डिसाइड कि 40% अब कैश पे मुझे हो जाना चाहिए, राइट? 30%. और अगर आप बिजनेसेस को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते रहोगे तो आपको पता है कि दिस बिजनेस इज गोइंग टू रन अगेन फर्दर, राइट? कारण क्या है, जैसे इन्होंने बोला कि आगे फ्यूचर का कोई कनेक्शन तो नहीं है, बट अगर आपको बिजनेस पता है और आप डायनेमिकली फॉलो कर रहे हो उस बिजनेस की ग्रोथ को, देन यू नो व्हेन टू कीप रनिंग माय बेट्स, राइट? सो दैट्स कैसे कंपाउंडिंग करनी है बेट साइज की भी, वो सब आप बड़े आराम से कर सकते हो अगर बिजनेस का पता है आपको. एंड आई थिंक आई विल पास ऑन टू माय कोलीग आल्सो इस मामले में, बिकॉज एज अ रिसर्च आप क्या देखते हैं व्हेन टू क्विट द पोजीशंस, और मे बी कोई प्रॉफिट काफ़ी मैक्सिमम आ रहा है तो कैसे. So, yeah, thank you, sir. There are so many opportunities, इतने stocks होते हैं. हमने कई सारे positions लिए हैं, कई बार exit किया है, कई बार losses में भी exit किया है. So what I see is, when you have a portfolio, so if you have, say 10 bets, 10 stock हैं आपके पास, 10 ideas है, आपने उसके ऊपर investment किया है, उसमें से कुछ 3 स्टॉक्स ऐसे होंगे जो 200-300% बढ़ जाएंगे, और कुछ 2-3 ऐसे होंगे जो 30-40-50% गिर सकते हैं. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एंड रेस्ट 6 or 4 वुड बी डूइंग नॉट मच इन लाइन विद द मार्केट. So when we as fund managers or as a research person, when we look at stock, what we see is that there are always unknowables in the market, and we cannot avoid the unknowables. We cannot say I should know everything. So knowing what can be known, but you cannot know what is unknowable. So be prepared that there are certain things which we will never know. So so always be prepared and always try to, there is a normal curve. एक normal curve होता है, bell curve कह सकते हैं आप. तो आपको ये कोशिश करना है कि हमेशा आपका जो लेफ्ट टेल है, यानी कि जो स्टॉक्स कम आप जो आपको रिटर्न कम कर रहे हैं, जिसको आप नहीं समझ पा रहे, उससे आप बाहर निकल जाएं. सो मिनिमाइज योर लेफ्ट टेल एंड मैक्सिमाइज योर राइट टेल. तो जो समझ में आ रहा है उसको आप होल्ड करें. ज़्यादा आप उसमें कॉन्फिडेंट है, यू विल बी एबल टू सी वेरियस साइकिल्स एंड आपको डर नहीं लगेगा. बट सम स्टॉक्स विच यू डोंट अंडरस्टैंड मच, और या करने के बाद आपको लगा कि अब मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ, सो ऑलवेज बेटर टू stay out of something. Try to maximize your right tail and don't concentrate on the left tail. वो होंगे, आप कितना भी एनालिसिस कर लो, वो एक आध शेयर ऐसे होंगे हमेशा. Yes. Be prepared for that shock. So that's the thing. So and obviously there is a rule: never lose money on aggregate basis.
As simple as that. Correct. And when in doubt, see rule number first again. So, like, if I paraphrase what sir and ma'am and even Suyog bhai contributed to, is that, like, even in downturns, ultimately it's your business knowledge, understanding, and your own honest assessment of your own risk profile will be your core strength to go to the next leap of upswing. So, like, Quitting is also like stock quitting is also like surgery, self surgery. You know, you bought a stock doing such a valuation analysis, right? You have taken bets on it, and you fall into emotion. You know, correct, sir. how could I go wrong? You know, that kind of things keep happening. How could I have done this? How could I have gone wrong? And that's something that you have to avoid. You have to cut your own fingers just to get out. That's the hard steps one has to learn. So, those theories about behavioral finance and all, we all know, because so that's why the people become losers sometime. They keep adding to a losing position sometime, because they thought the valuation was very good and it's coming at the same valuation. But something wrong is inside happening. Dynamically, they don't understand the business, so they fall into that trap. Correct. So, like, the essence is, like, what I make out of the discussion is that, like, wealth creation is one aspect, and capital preservation is तो like paramount. But wealth preservation goes hand in hand, because पैसा बना तो लिया, चाहे notional या real जो भी हो, but उसको बचा के कैसा रखा जाए. एक चीज़ उस पर ऐड करना चाहूँगा. See, ultimately why most of the people lose money in stock market is that they come with an expectation to make money. Don't come with an expectation to make money. Come with an expectation कि भाई पैसा नहीं गवाऊंगा. उस माइंडसेट से आएंगे ना, ऑटोमेटिकली पैसा बनेगा. इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ पास्ट 30-40 years, मार्केट हैज गॉन अप, स्टॉक्स हैव गॉन अप, HDFC has gone up, everything has gone up. People have not made money. Many people have not made money. It is very easier said than done. There is an entire book by the name of Expectation Investing on this single line. What I'm saying is, when you focus margin of safety, automatically that problem sorted. 100 becoming 90, coming back to 100 takes 11% efforts. Correct. 100 becoming 50, going back to 100 takes 100% efforts. Yes. So, not losing, as Warren Buffett says, rule number 1, don't lose money. Rule number 2, don't forget rule number 1. Yeah. So, not losing, we should avoid permanent loss of capital. That is important. The stock market ऊपर नीचे होता रहता है, पर avoiding permanent loss of capital, as simple as that. Correct. So coming back to wealth preservation. So, Himanshu sir, can you elaborate on your stock market journey and why did you opt this particular field for your career choice? So, Because after that I will go into that, the core part, but I wanted to have. So I was proper- in class 11th, and there was a guy. His name is Varun Malhotra. He was from IIM, and he was, there was some seminar in my school. So he explained about this stock market and all. And I was just in class 11th, so nobody is having that kind of psyche. Hota kya hai ye sab and everything. And that day I got to know कि CA में ना 33% आ जाए तो आप कर सकते हो pursue. So I was the only guy. Number तो 33 भी आएंगे तो ठीक है. I can do CA. So every time what I planned, plan A and plan B should be in my pocket. अच्छा हुआ तो कितना अच्छा, बुरा हुआ तो कुछ होना चाहिए बैकअप के लिए. It's not like the way you are managing your portfolio, what you are thinking. If every time market cannot go into one direction. When market will fall, how will you protect your portfolio? What is the way out? In the same manner, when I was in my class 11th, I said, पास तो मैंने हो ही जाना है, उसके बाद CA कर लूँगा, अभी ना stock market पे focus करते हैं. So I convinced my father somehow, and the first mutual fund which I bought was in the name of my father, SBI Blue Chip. So this is how, I went to the bank and asked, क्या लूँ बताओ, और वो वरुण मल्होत्रा का कुछ videos and everything I saw, and that time I got to know about this thing, and this is how my journey got started. Again, मेरा 12th में सबसे bad marks आया. I got only 58%. Yes, in CA, in one shot, I got 499 marks. एक बार में पूरा group 1, group 2 किया. But still, जो main motto था to understand this thing, वो वहाँ से drive हुआ. So this is how my journey started in stock market. So again, jigyasa. Can say Curiosity that. killed the Right, cat. right, Yeah. right. Okay. So, like, you
can, for the benefit of our audience, can you like explain like family offices? All right. So before family office, I'm just continuing that particular part. How many of you knows that the way we are ensuring our life, the way we are ensuring our medical things as well, can we have something where we can insure our portfolio? How many of you knows about this thing? Apart from Devashi sir. Anybody is having some idea regarding that? Asset allocation theory? No, no, no. So there is a concept of leap, right? So Suyog knows, like he follows Warren Buffett and everybody talk about Warren Buffett. How many of you knows this thing very well कि Warren Buffett ने downside हमेशा leap से बचाया था? So upside is there, right? Everything is there. But when it comes to downside, उधर पैसा कैसे बचेगा? पैसा बचेगा first thing. Again, उस duration में पैसा कैसे बनेगा? So Warren Buffett, like you can just Google it and just read the entire thing about it. I'll not take much time on that particular topic. But yes, there is a concept of leap. Through leap, you can insure your portfolio. For example, if I'm having 100 rupees, 3 years down the line, if I am bullish on market and I want to insure my portfolio, I need to pay 6.5% or 6% insurance. Am I right, ma'am? So when you are paying 6.5% insurance premium to insure your portfolio, then there is no worry. Market ko girne do na. There are some things, there are some products, there are some ways to protect your portfolio. तो point आता है कि जब गिरेगा तो कैसे पैसा बनेगा. Now you have a solution for that as well. So that is the concept of leap. I would like to add on that. So this leap concept is not for all. First of all, yes, right, ma'am. So it is you have to be first create that stage where it should be insured. Yes. So because insurance करने के लिए वो wealth बनना भी चाहिए. तो पहले wealth बना क्योंकि ये उस लेवल पे है जैसे मतलब it is for large portfolios. It is not for you. Leap का मतलब minimum 1 crore ticket size होता है ना. It's just some things. हाँ, so that is what I wanted to add. So, like Himanshu sir, further like the idea of family office, kindly elaborate Okay. that. So Because you are a wealth, so I worked in protection Anand Rathi Private Wealth Vertical earlier. So the one thing which I understand, like to manage your own wealth, like everybody wants to create wealth for themselves. First thing is to understand ये family office क्या है? Like what is family office and how it comes into light? And now in India only 200 family offices are there. It's shocking. मतलब इतना बड़ा country है 200 family office है. And what is family office? So for example, if पता नहीं आज इसी community में से कल 4, 10, 20 family offices बने. And what is family office? हम सब किसी company के लिए काम करते हैं, right? या किसी हमारी कोई company है. In a same manner, if I'm having my portfolio with myself, in my portfolio, what are the things which I'm keeping for myself? Real estate is there, right? Equity is there, bank balances are there, PPF is there, everything is there. So if I need to see my performance, so the way Suyog used to say, वो stock तो 10 गुना कर गया, but आप portfolio level पे नहीं देखते हो. तो family office management के अंदर portfolio level पे बात करी जाती है कि पोर्टफोलियो क्या रेट से ग्रो हो रहा है. पोर्टफोलियो सिर्फ इक्विटी का नहीं होता है. पोर्टफोलियो इंक्लूड्स द एंटायर एसेट क्लास. दैट कैन बी इक्विटी, डेट, कमोडिटी. देयर आर 4 एसेट क्लास इन द वर्ल्ड, राइट? अभी वो 5th का आई कैन नॉट से. क्रिप्टो इज कैन बी और कैन नॉट बी. आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट. बट दे आर 4 एसेट क्लास. सो रियल स्टेट, इक्विटी, बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड गोल्ड. सो आर मनी जो भी है वो उन्हीं 4 एसेट क्लास में है. तो अगर मुझे रिटर्न देखना है और वो मैनेज करना है तो आई नीड टू सी ऑन अ प्रॉपर लेवल कि ये कैसे होता है. तो फैमिली ऑफिस मैनेजमेंट जो फैमिली ऑफिस है वो पूरा इंटायर काम करता है उस पोर्टफोलियो पे, ना कि सिर्फ इक्विटी पे. इक्विटी एज एसेट क्लास. So हिमांशु सर, अगर मैं बोलूँ तो like family offices treat a family and उसके asset in a corporate manner. Absolutely. And optimize and maximize the overall return. Absolutely. rather than an individual asset class जैसे कि equity पे जैसे सर बोल रहे थे. Absolutely right. Oh, okay. So that is there. ओके. तो चलिए, विपिन सर ने और मैम ने वेल्थ बनवा भी दिया, आपने प्रोटेक्ट भी कर दिया. अब मैं सुयोग भाई से एक सवाल पूछता हूँ कि सुयोग भाई,
if you make 1,000 crore rupee from stock markets, will you put all the money in bank FD and enjoy? Because अब तो पैसा बन गया, अब क्या करना है? What will your approach? You know my answer, what is going to come. चलो एक बार फिर से See, stock अच्छी बातें market, सुनते रहना चाहिए। stock market is the only place which you can do this business till the last day of your life. Warren Buffett at 96, Charlie Munger at 97, he did this business till the last day of your life. Why the H on earth you would like to put that in bank FD and do nothing? Because Okay. this is such a business which doesn't require any manufacturing setup, service setup. It is your capital, it is your understanding of the business and your decision. And if I have been sharing about this, that the biggest secret of success, the biggest secret of long life is happiness. And I'm loving what I'm doing. And if there is happiness, there will be long life. So in that case, I'll never That- put that that into we- bank that from FD. Vipin Yeah, sir. yeah. वही मैं आने Sir वाला also. था आपके So why I'll not put that in bank FD? It is like business of buying business that can be done till the last day of your life. It is not that कि 100 करोड़ पहुँचने हैं, 1000 करोड़ पहुँचने हैं, 10,000 करोड़. It is that कि ये activity करते रहना है till the last day of your life, last day of my life. That is what I'll be doing. Okay. So can I expect some some light from our industry stalwarts? मैम आप okay. ऐसे तो ladies first रहता है but Everything is relative, as I said, in this world. Even wealth is. So suppose आपके पास 1,000 crore है और आप परेशान हो, और मेरे पास 100 crore और मैं बड़ा खुश हूँ, hunger basically. तो who is a richer person? Obviously. Yes. You know. So सबसे पहले तो यही चीज़ पे फोकस करना है कि enjoyment यही है, मतलब what you are doing, you continue to enjoy. Wealth फिर अपनी proportion में अपने आप, किसी का कभी छक्का लग गया, कभी किसी का छक्का लग गया, चलती रहेगी. उसको कोई रैपिड आपस में रेस लगाने का मतलब भी नहीं है. और सेकंड, अगर आप उस वेल्थ को यूज़ करना नहीं जानते, यूज़ चाहे दूसरे के लिए चाहे अपने लिए, तो फिर वेल्थ का मतलब ही नहीं है करने का. क्योंकि शानदार लाइफ इस टाइम पे एटलीस्ट इंडियन स्टैंडर्ड में आदमी के पास 1 करोड़ साल का तो बड़े शानदार लाइफ जी सकता है, खाना पीना सब कुछ है. लेकिन अगर आप उस वेल्थ को, बिकॉज वॉट एवर यू आर अर्निंग थ्रू अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सोसाइटी में जो है, हम एक दूसरे से बना रहे हैं सब कुछ. कोई दूसरा एफर्ट कर रहा है कंपनी के अंदर, प्रमोटर है, हम इस सोसाइटी से वी आर गिविंग इट टू यूनिवर्स एंड वी आर गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, राइट. सो वेल्थ को भी इसी एंगल से सोचना है कि वी आर लिविंग इट फॉर यूनिवर्स एंड कंटिन्यू टू एंजॉय एंड कीप मेकिंग वेल्थ. Ma'am, you? I think I share similar kind of views what Vipin ji or they have mentioned. I mean, if you have 1,000 crore asset, it's all it's there in you, I guess. Some people are not happy with 6 lakh crore of market capitalization, 8 lakh crore of it's your thermometer or it's your barometer. So I think it's a very personalized question. Everybody, has to see into their own. No, but what would you do? The question is simple. What would you I have do? not yet achieved it. No, it's just hypothetically speaking. But yeah, okay. So obviously, when you achieve certain thing by, say for instance, if I achieve it because of investing into equity market, see, the word equity itself means that you are partner to something, right? And if you are achieving something because of something, you tend to like that thing. If you achieve success because of your mother, because of somebody in your family, you have huge round of gratitude towards that. If you're achieving 1,000 crore of money because of equity market, why should I leave that? I would never leave that. I'll still continue to do that. Thank you. Nice. Very beautiful. I have a 2-word answer to that: give back. Yes, sir. That's it. Definitely. Gratitude in itself is the highest order of giving back. Right. So Himanshu ji, please do the needful. Abhi So, bataiye. 1,000 crore is the big money, yeah. So, because of some network and Vipin sir network, I got to know some promoter group and first line promoter group. They are having a net worth of 50,000 crore, 40,000 crore, 30,000 crore. I met them, and the one thing which I learned from them,
वो तो हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा. सो खुश कहाँ है, मतलब व्हाट इज द हैप्पीनेस लाइक फॉर दैम. सो दे सेड कि मैं फिलंथ्रॉपी करता हूँ इतना जो भी परसेंटेज है, ओके, फॉर दैम दैट इज हैप्पीनेस. मे बी फॉर पैशनेट पीपल लाइक सुयोग, ही सेड मैं इतने लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाऊंगा ये लर्निंग देके. So for him that is there. But if you will ask me as a person particularly, I can say whatever I learned from Vipin sir, Suyog ma'am and the promoters groups and all. So life, whether you are having 1,000 crore, 10,000 crore or 1 lakh crore, responsibility बढ़ जाती है. आपके लिए जीरो सिर्फ अकाउंट में बढ़ते हैं. अभी वो पोर्टफोलियो 1,000 करोड़ का होता है तब भी आपका एक ही मोटो होता है, क्या अगले ईयर 12%, 15%, 18% एज अ पोर्टफोलियो ग्रो होगा. सो यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय. किसके लिए? वो कभी उस पोर्टफोलियो के लिए. वो पोर्टफोलियो क्या ड्राइव करता है? वो फिलंथ्रॉपी से तुम्हें हैप्पीनेस दे सकता है, वो तुम्हारी फैमिली की लग्जरी लाइफ को दे सकता है, कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. बट वन थिंग विच इज क्लियर कि आप जब तक कंसिस्टेंट काम करते हो, और वो 1,000 हो या 10,000 हो, वो आपको वो, और वो पैशन से आता है. वो प्रमोटर से मिलो तो वो ये नहीं कहते कि मेरे पास 10,000 आई कैन सिट रिलैक्स और मैं एफडी में डाल देता हूँ एंड आई विल बी हैप्पी फॉर एंटायर लाइफ. वो तो कंज्यूम भी नहीं कर सकते हैं, राइट? बट व्हाट वी लर्न, अंबानी जी इसको या किसी को भी देखते हैं हम, सो दे आर वर्किंग डे नाइट. सो दिस इज द रियलिटी. सो आई थिंक आई पर्सनली से दैट आई थिंक आप लोग कितने सुयोग को पर्सनली उस केस में जानते हैं नहीं. सुयोग इज द गाय, वो 15-15, 20-20 दिन तक रिसर्च के लिए, व्हेन इट कम्स टू रिसर्च, क्योंकि पैशन है वो उसको, मनी इट डजंट एक्साइट हिम अ लॉट. आई सेड भाई इतना, बिकॉज आई एम एंटरप्रेन्योर, आई सेड ये पैसा ऐसे घुमा के इतना पैसा बनेगा एंड ऑल. ही सेड ये छोड़ दो सर, रिसर्च मिला है मुझे 12 दिन में सो के. इवन विपिन सर को सुबह 8 बजे कॉल करके ही यूज्ड टू कॉल हिम एंड से सर मैंने ये निकाला है और ये चीज़ है. सो फॉर हिम दैट इज वेल्थ, that is happiness, and that is 1,000 crore. So that is the definition of मतलब for every person 1,000 crore का definition क्या होगा, मेरे लिए वो है definition कि किसी का क्या USP जो उसको optimal level of satisfaction देता है, that is the case. Okay, so like after like hypothetical and philosophical questions, ma'am, I would want to know like what does overvalued mean to you? Is it a metric, like specific metric you look at, or like irrespective of the metric, whatever it is reading, you look at it vis-a-vis the total addressable market, the potential at hand? So what is overvalued to you? See, this question is, to me, is more or less similar to the margin of safety, what we discussed. Yeah, it's the other spectrum. So overvaluation, yeah, there are chances, there are good amount of time when stocks go overvalued. See, there are, you have to understand that what is the dearth in the company. मतलब उस इंडस्ट्री में या उस कंपनी में क्या चीज़ की कमी है और क्या चीज़ वो अब पूरा कर रहा है. So if the industry is lacking with the growth in sales, then you understand that valuation ratio which has a sales element will be valid. Because अगर आप several valuation parameters को देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाइएगा. यू विल नेवर गेट, एंड देन यू विल थिंक ओके CAPM मॉडल लगा दो कैश फ्लो बेसिस पे, विच अगेन विल कम आउट विथ सच फिगर कि यू विल नेवर बी एबल टू टेक अ डिसीजन. सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अब ये ओवर वैल्यूड हो गया है, अब ये अंडर वैल्यूड हो गया है, do some fundamental thinking about the stock which doesn't have to be, businesses are very simple. कोई भी बहुत टफ तरीके से कोई पैसा नहीं बनाता है. कपड़ा बनाना बहुत सिंपल काम है, आप जाओ मशीन में, सालों से, मतलब कब से बने जा रहे हैं. सो बिजनेसेस आर वेरी वेरी सिंपल. देयर इज नो डिफिकल्ट बिजनेस, एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, you need to just have an investment thesis in your mind why you are liking that company, and that reason why you're liking, that will be the reason why you will be selling that company. So overvaluation, undervaluation में तो हमेशा क्या होगा, आपके माइंड में रहेगा कि मैंने गलत भाव पे I quit that share. जैसे हमने टाटा एलेक्साई लिया था, we multiplied good amount of money in that, and then when we exited Tata Elxsi, people used to tell us कि मैम आप Tata Elxsi, you have come out with Tata Elxsi, it's still going up.
और हमारे बेचने के बाद भी वी मल्टीप्लाइड सब 10 times in Tata Elixir. Still the company was still going up. But what we thought कि अभी जो इनके द नंबर्स ऑफ जिसके ऊपर बेस्ड है वहाँ पर हमें लग नहीं रहा था कि और एक्सपेंशन इन मार्जिन कुछ हो पाएगा एट दैट पर्टिकुलर टाइम. So we thought कि our investment thesis is not applying. Let us come out of it. And after that it went up 20-30%. And then finally, तो आप हमेशा एक डाउट ही करते रह जाओगे हमेशा वैल्यूएशन नंबर में. आई थिंक दैट इज द वे वी लुक एट थिंग्स. मार्केट्स आर एनीवेज अ प्लेस ऑफ रिग्रेट. जल्दी बेच दिया, लेट बेचा, सो या खरीदा नहीं, अवॉइड दैट, कीप योर कूल की मेरे थीसिस पे नहीं किया एलोकेशन और ले लिया होता. मैं आता हूँ ये बाइक पे बोलिए Exactly. सर आप प्लीज. हाँ बताइए सर, सबसे बड़ा रिग्रेट किस चीज़ का होता है? उस टाइम पे ज़्यादा मेरी तो कॉल बिल्कुल ठीक थी. अरे सर मैंने तो उसको बताया था लेकिन खुद नहीं तो लिया. ऐसे ज़्यादा रिग्रेट्स होते हैं. मैं डिस्कस करता पार्टी में मिलकर आया था कंपनी से, मैंने बताया पूछ सुयोग से यार, सुयोग ने लिया होगा मैंने नहीं लिया होगा. Yes sir. So yeah, nice. So ma'am, can overvaluation be the sole criteria of you exiting a particular stock? Because like in recent times especially because of two things, the bull market as well as the technology share run, and technology disruptions act in markets in a very different manner. They do not protect the graph Exactly. horizontally, they take it vertically. So Absolutely. will it be wise to use overvaluation alone as a criteria to exit a stock or a portfolio? Yeah, at times it does help you because see अगर आप मतलब जिस तरीके से हम रिसर्च करते हैं और हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझना, आगे को प्रिडिक्ट करना, कोशिश करना, प्रिडिक्ट तो कभी नहीं कर पाते, बट देन देर आर टाइम्स जब बहुत क्लियर मार्केट 5% टाइम्स काफ़ी क्लियर होता है कि ये ओवर वैल्यूड है, यहाँ पर we need to exit. See how we look at, so we have say 12-15 stocks in our portfolio. तो जब हम exit करने के लिए जब भी सोचते हैं, what we see, we calculate our own कि ये कंपनी में कितनी upside है. और जब हम पूरे पोर्टफोलियो में देखते हैं, सो मार्केट का ओवर वैल्यूएशन, मार्केट कई बार द निफ्टी इटसेल्फ, व्हेन यू टॉक अबाउट निफ्टी कि निफ्टी अब ओवर वैल्यूड हो गया है तो इससे सारे स्टॉक से निकल जाओ, दैट इज़ नॉट बिकॉज यू डू इट ऑन अ केस टू केस बेसिस. एंड डेफिनेटली जब हम पोर्टफोलियो में देखते हैं कि हमारे पास अगर 20 में से 16 स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर अपसाइड जो हम थीसिस लेके चल रहे हैं और जिसके कारण उतनी अपसाइड बननी चाहिए, वो अपसाइड काफ़ी श्रिंक हो गया है. So there is 5 to 10% gains in those good companies also. Say for instance Tata Elixir, काफ़ी अच्छी कंपनी, आपको निकलते समय भी डर लगेगा कि निकल जाए या नहीं. So जब ये ऐसा रहता है, जब हम देखते हैं कि 20 में से 16 कंपनी ओवर वैल्यूड हो रही है एंड आई एम नॉट गेटिंग अनदर स्टॉक कि इसको मैं कैसे रिप्लेनिश करूं, तो डेफिनेटली वो एक सिग्नल हमें करता है कि मार्केट भी कहीं ना कहीं पीक हो रहा है एंड डेफिनेटली वो स्टॉक्स भी. सो इट इज़ not the sole criteria but definitely a very very important criteria to look into it. So sir, एक छोटा मास्टर क्लास दे दीजिए, how to identify companies not to invest into. कैसे पता करा जाए कि अकाउंटिंग शेनानिगन्स है, वो मैम भी थ्रो करेंगी लाइट उस पे. नहीं एक्चुअली क्या है, पुअर है, बहुत ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है. आई थिंक यू रेफर टू माई आइंस्टाइन लॉस्ट ऑल हिज मनी इन स्टॉक मार्केट, राइट? तो मतलब हर चीज़ जाननी है, ये भी जानना है कि क्या नहीं देखना है, और ये ज़रूरी नहीं है लाइफ में. आपने मक्खन निकाल लिया, छाछ है कि और पी लेगा, छोड़ दो उसको यार. हर एंगल को देखने की जरूरत नहीं है बॉस. डोंट ओवर बर्डन योर माइंड बाय ऑल दिस सेल्फ इमेजिन थिंग्स. जस्ट रिलैक्स. अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे, इनफैक्ट बिकॉज दैट्स हाउ वी जेल वेरी वेल, सुयोग एंड मी. एक कंपनी ट्रांसफार्मर की कंपनी थी, तो जब हमने उससे मिले मैनेजमेंट से बाय चांस, कई बार चांस प्लेज अ वेरी बिग रोल इन आइडेंटिफाइंग इंडस्ट्रीज़. तो उसने बताया कि यार बहुत बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, हमें कुछ करवाओ वर्किंग कैपिटल, राइट? तो हमने कहा जब ऑर्डर्स आ रहे हैं तो अंडरस्टैंड करें, स्टॉक मार्केट के स्टूडेंट है, देखें भाई किस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है. तो उसने सारा समझाया कि कैसे 20-25 ईयर्स के बाद
इंडिया में ट्रांसफार्मर्स बदले जाएंगे, 2 लाख ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट आएगी डिस्ट्रीब्यूशन के। फिर उसके 2 दिन बाद ये अचानक कहते हैं डेस्टिनी रोल प्ले करती है। एक आर्टिकल देखा वॉल स्ट्रीट वगैरह में कि यूरोप इज शॉर्टफॉल ऑफ ट्रांसफार्मर्स, दे आर इम्पोर्टिंग ट्रांसफार्मर्स। तो सारी जेल तो देखा वो कंपनी बड़े सस्ते में अवेलेबल थी, क्योंकि उसकी पहले उससे 3-4 साल पहले फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी ख़राब थी। लेकिन मैनेजमेंट की क्वालिटी पे हमेशा से डाउट था। वी न्यू दैट कंपनी। तो हमने 12 रुपये पे वो शेयर लिया, राइट। और जब देखा कि यार अब ग्रोथ और इंडस्ट्री के लिए तो बिल्कुल आगे आने वाली ग्रोथ है, लेकिन मैनेजमेंट कितना हैंडल कर लेगी उस ग्रोथ को, कितना इंप्लीमेंट कर लेगी, उसमें औकात है भी कि नहीं। तो वो वहाँ में हमने शेयर बेच दिए। उसके बाद भी वो शेयर बढ़ता रहा, लेकिन तब हमने क्या किया, वी मेड अ स्विच टू अ मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट इन दैट इंडस्ट्री, राइट। कि दोज गाइज, बिकॉज तब इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास हो गया कि अब इंडस्ट्री चलने वाली है साल 2-3 साल, अच्छा पैसा बनाएगी। तो वी मेड मोर लुक फॉर मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट इन दैट इंडस्ट्री, और उनमें स्विचिंग स्टार्ट कर दी। सो दैट इज, और सब कुछ नेगेटिव देखने की जरूरत नहीं है। I'd like to add on to this because Himanshu were on his farmhouse in Delhi, and ऐसी बात करते करते उन्होंने ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री का इनसाइट बताया। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, हाउ मेनी ऑफ यू ओन ट्रांसफार्मर्स? हाउ मेनी ऑफ यू ओन ट्रांसफार्मर्स? प्लीज रेज योर हैंड। स्टॉक, ट्रांसफार्मर स्टॉक्स, ट्रिल, भारत बिजली, whatever. I don't want to take the names. Transformers. So everyone should thank Vipin sir for the transformer bet, because let me tell you that on that day he said that 25 साल में जो नहीं हुआ है वो सिमिलर। आई हैड सम थॉट बट आई डिड फोकस इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, मतलब इंडस्ट्री जिसमें इन्होंने ग्राउंड पे बहुत काम करते हैं, he works with the industries, he talks to the promoters, managements and all, because ये funding और उसमें सब है। So the insight which he shared is 25 सालों में जो नहीं होने वाला हुआ है वो अगले 5-7 साल में होगा। So he gave me that insight. I dig deep. So I gave him one more angle actually, in fact, about green energy. So हाँ, क्योंकि इन्होंने बोला था कि रिप्लेसमेंट ट्रांसफार्मर्स क्या होंगे, दैट इज वो तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गए, पावर ट्रांसफार्मर की भी रिप्लेसमेंट होगी। बट जब इंडस्ट्री डिग की तब समझ में आया ग्रीन एनर्जी को 3 गुना ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स लगते हैं। अभी तक जितना हमने मेगावाट कैपेसिटी ऐड किया है 75 सालों में, उसका 2x, मतलब उसका रिपीट सेम अगले 7 सालों में होने वाला है। एंड 80 to 90% ऑफ दैट विल बी डन बाय रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना पावर ट्रांसफार्मर की ज़्यादा कैपेसिटी लगती है। उसका रीज़न है सन कभी भी सन सोलर हो गया या विंड हो गया, कभी भी स्टैटिक नहीं होता, मतलब एक इसमें नहीं होता है, वेरिएशंस होते हैं। उस वेरिएशन की वजह से स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स लगते हैं पावर ट्रांसफार्मर्स में। तो 3 गुना का आंसर मिल गया मुझे। यह आंसर ढूंढने के लिए मुझे 12-13 दिन लग गए, तो उसी के पीछे लगे थे। तो मतलब इनफैक्ट फॉर 2 days आई डिडंट स्लीप कि भाई ये कैसे, मतलब 3 गुना क्यों। सो बिकॉज आई वॉज नॉट कनेक्ट, इन्होंने कनेक्ट करा के दिया इंडस्ट्री में, उन्होंने कुछ बताया। तो वी ओन ट्रिल आई बॉट इट एट 88 रुपीज़, टुडे इट इज़ एट आई थिंक 350-380 विद इन 6 months। सो जब इंडस्ट्री इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आती है ना, तो बहुत बड़ा पैसा बनता है। एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट इंडस्ट्री, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इन द कन्विक्शन क्लब, दैट हर एक इंडस्ट्री का कुछ इंसाइट आपको एक मेगा ट्रेंड ढूंढ सकता है। क्योंकि इफ यू फाइंड अ मेगा ट्रेंड, you are here for a long run, and if you find the able management from that, so the company which we discussed, the case which we discussed, the most efficient management in the transformer industry. So when you find a theme, even if you buy the laggard company from that, still you are going to make money. So finding the right theme is important, and I'm now he is a part of Conviction Club also. Yesterday only we have added him. I'm sure that many such mega trends will be able to learn from, get an insight about industry on that. Actually, this is how destiny plays a role. You know, अगर हम सब कर रहे हैं ना ठीक ठीक काम, तो डेस्टिनी कीप्स प्लेइंग इट्स रोल। कोई मिलाएगा अच्छे लोगों से, रीच आउट करते रहो, राइट। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका कॉन्सेप्ट।
ये बहुत ये जाने वाला है, और हिमांशु और ये दोनों जहाँ पे कोई भी गेट खोल सकते हैं. मतलब एट दिस ये एज आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय देम. हिमांशु की तो नेटवर्किंग लाजवाब है. मतलब ही कैन एंटर एनीवेयर, ओपन एनी डोर, जिसको बस लग जाए चलो बस. उसके बाद सो आई लाइक दैट स्पिरिट. ये स्पिरिट होनी चाहिए हमेशा, तभी आपके पास नई नई चीज़ें कुछ चल के नहीं आने वाली. पहले आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर अपने आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता रहता है. वी कीप लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. एक दूसरे से मिलाता है. दूसरा कल आई वॉज इन IEW इंडिया एनर्जी वीक गोवा. वहाँ पे जाके 3 चीज़ें मैंने टेक अवेज लेकर आया. एक तो इंडिया को लार्ज स्केल दुबई में जैसे इवेंट्स होते हैं, आप लास वेगस में जाओ कंज्यूमर, वैसे करने की आदत हो रही है. भयंकर इवेंट था वो. तो मैंने जैसे जफर भाई बैठे नहीं यहाँ पे, बेशक बाहर हैं, उन्होंने बताया बिकॉज गेल से थे, सो दे वर ऑल डेप्यूटेड. कल प्लेन में आया गोवा से, तो सब ऑयल कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स वहाँ पे, सब चेयरमैन बोर्ड्स, दे वर कैंपिंग फॉर 4 days. सब टॉप कंपनीज के वर्ल्ड वाइड लगे हुए थे, यानी कि मेगा स्केल पे. तो पूछा 400 से 500 करोड़ इन्वेस्ट किया सरकार ने इसके अंदर. यानी कि इंडिया में इवेंट एग्जीबिशन इंडस्ट्री कहाँ पे जाने वाली है, जिस साइज ऑफ हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, राइट. मतलब एक मेगा स्केल की आदत हो रही है अब इंडिया को. तो आप अंदाज़ा लगाओ कि क्या चीज़ें होने वाली है इंडिया के अंदर. इमेंस पॉसिबिलिटीज. Very like insightful, sir. But like one key word which you used, like in your example of identifying transformer player, that like इसके पास वो स्केल है भी कि नहीं जो ये एग्जीक्यूट कर पाएगा ये अपकमिंग डिमांड को. एक एनेक्डोट बताता हूँ. 2017 में आई लिव इन फरीदाबाद. तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को एक्शन कंस्ट्रक्शन के मालिक से मिलाया. उनके साथ गोल्फ खेलते हैं. उस टाइम पे शेयर का रेट था 70-80. तो जब मैं उनसे मिला तो उन्हें बोला यार थोड़े पैसे की ज़रूरत है पर्सन, राइट. तो फिर मैंने उनका बिजनेस समझा. तो वहाँ पे जब हमने उस बिज़नेस को रिसर्च कर रहे थे, तो क्योंकि क्रेन्स एक ऐसा बिजनेस है, एंड ही वॉज ऑलरेडी द लार्जेस्ट पिक एंड कैरी ट्रेन्स मैन्युफैक्चर इन द कंट्री. तो कुछ भी प्रोडक्ट आए, कुछ भी बिजनेस, कोई फैक्ट्री बनाना चाहे ठीक ठाक स्केल की, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, सब में सबसे पहले क्रेन आनी है, राइट. और इंडिया में वो 30% चीपर बन रही है. फिर जब रिसर्च किया 2008 में, जब बीजिंग ओलंपिक्स थे 2005-6 के अंदर, चाइनीज़ में क्रेन कंपनीज ही जूमलियन वगैरह, दे वर जस्ट 10, 20, 30, $40 million कंपनीज. एंड इन 1 year दे बिकम $5 billion कंपनीज, $10 billion कंपनीज, $40 billion कंपनीज इन 3 years. तो यानी कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर का मोमेंटम और लार्ज प्रोडक्शन कैपेसिटीज का मोमेंटम आता है ना, तो कुछ भी हो सकता है. आज वो एक्शन वाला शेयर ₹60 वाला शेयर 1150-70 है. बीच में 2 बारी बाईबैक्स दे चुका है, हर साल डिविडेंड दे चुका है, राइट. बीच में एक बड़ा डीप डाउनटर्न भी आया था. तो इमेजिन, तो जब एक मोमेंटम चलता है ना किसी भी इकोनॉमी का एज लार्ज एज इंडिया, तो एनीथिंग कैन हैपन. उसको आपको मॉडलिंग कैसे करनी है, वो आपको अपनी कॉम्पिटेंस पे डेवलप करना पड़ेगा. कीप टॉकिंग टू पीपल, अंडरस्टैंड मोर इंडस्ट्रीज. Correct. I would just like to add a small incident that had happened to us. Action construction के बारे में आपने बात किया. So 2008 around. This promoter is from Escorts only. Escorts के ही है. तो and then फिर अपने आप ये business start किया. तो when we went to meet the company and we met the CFO. एंड यू वॉन्ट अंडरस्टैंड, मतलब इतना छोटा सा एक क्यूबिकल था और फाइल्स और सब कुछ से घिरे हुए थे. एंड ही सेड ओके यू सिट, एंड वी वर फाइंडिंग प्लेस कि बैठे कहाँ. मतलब ही वॉज सो डैम बिजी एंड ही वॉज आई मीन. एंड व्हेन वी केम बैक रिसर्च, तो फील्ड रिसर्च करते रहते हैं. व्हेन वी केम बैक वाज लाइक सर वो इतना बिजी है कि he will do something. I mean there were so many people and everybody was like the office का aura जो था that time. And but yeah, that time we didn't buy that company, and later on because we already had an experience, so we already own that company. So that's. So idea क्या है यहाँ पे कि एक कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग भी, भाई कंट्री बननी है, एक ही बड़ा प्लेयर है क्रेन्स का,
मैं किसी को सामने कई फंड में बोलता था नहीं नहीं वो कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बड़ा कुछ सुना है, ऊपर नीचे करता है, एडस्कॉट्स को थूक लगा के आया है, ये चीज़ है। अरे भाई एक ही मैन्युफैक्चर है बाय एंड लार्ज उस स्केल का, उसको तो टेलविंड कभी भी मिलेंगी। वो स्कॉट्स ने कुछ प्रोडक्ट वर्टिकल से विड्रॉ भी किया था आफ्टर कुबोटा में। हाँ मतलब नहीं, देखो वो तो खैर अभी लेट की स्टोरी है। कह रहे का क्या मतलब है, कई चीज़ें ना कॉमन सेंस को डोंट पुट कॉमन सेंस असाइड। Correct, correct, correct. While doing any valuation exercise, just what comes natural to mind, sometimes use that also. Yes. I would like to add on this. We are so blessed to be in India today at this stage. We are at that, I've been repeating this. India is at that stage where China was in 2006. Am I right, Vipin? India is at that stage where US was in 1980. And we are so blessed that we have some books to, means we have some countries to read. Just read US. Just read US. What has happened, same thing will happen in India. Warren Buffett didn't had any reference. We have that reference. We are so lucky. So from that angle, and if you keep your eyes and ears open, for the next 10, 15, 20 years, we'll see that Warren Buffetts will be born in India. And in fact, he was sharing on that day when I was on his farmhouse, he said that there will be multiple, one of the mega trend is wealth management industry. So there will be multiple, he was talking that Connecticut mein koi beta hai, 1 lakh. Actually, you know, in 1998, when I was with DBS Bank Singapore, I was head of their institutional broking. So we used to go and market in US. तो किसी को हम मिनियापोलिस में जाके मिल रहे हैं, राइट? सब कुछ न्यूयॉर्क में नहीं था, किसी को सैन फ्रांसिस्को में जाके मिल रहे हैं, किसी को फ्लोरिडा में मिल रहे हैं जाके, फंड मैनेजर्स बैठे हुए थे वहाँ पे। यार ये क्या चक्कर है, मतलब लाइक हमारा तो सब कुछ बम्बई में है, मतलब यू नो एवरीबडी इज कंसिडर्ड एट वन प्लेस। क्योंकि एक तो वहाँ पे एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हमेशा आगे था, राइट? प्लस जो वो वेल्थ बन रही थी, तो वेल्थ ये थोड़ा कि जाके शिफ्ट सारे न्यूयॉर्क में जाके बैठ रहे थे, राइट? लोकल डेवलपर्स, लोकल वेल्थ मैनेजर्स, लोग, अब कोई किसी से फॉर एग्जांपल रांची में बड़े पैसे बन गए, राइट? कई तो एक के नहीं बनते, कईयों के बनते हैं। तो आप उसको वेल्थ मैनेज भी करें तो डायपर डिस्पर्स करेगा, समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट बताएगा चेक को दे दे भाई, लोकल वाले भी कामयाब हो जाएंगे। यू नो दैट्स वेल्थ इतनी लोगों की बनेगी। आई एम श्योर सम वॉरेन बफेट तो अब यहाँ पे बैठे ही होंगे, बॉर्न नहीं, ऑलरेडी बॉर्न हो चुके हैं। Nice, nice. So, sir, like some insights on SME markets, like and its crazy run. So Is it like, you know, the glass is that's a half subject full that I love. or half क्योंकि empty? पैसा तो ना छोटी कंपनी का बड़ा होता तभी बनता है, बड़ा पैसा तो, ये तो फैक्ट है। अब उसमें कई पेनफुल एक्शन रिएक्शन चलते रहते हैं। एसएमई इंडिया में 10-12 साल से एक्सचेंज, लेकिन इट हैज़ गेन्ड इन प्रोमिनेंस ओवर लास्ट 2.5 years ओनली। सबसे पहले टू यू गो टू द सोर्स व्हाई इट हैज़ हैपेंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर जस्ट ये नहीं कि इंडिया ग्रो कर रहा है जी, अब इंडिया में पैसा आ रहा है, ऐसा है, लेट्स क्लियर आवर थिंकिंग। कुछ ना कुछ ट्रिगर्स चाहिए होते हैं, किसी भी बड़े शिप को एक बार धक्का दे दो ना, फिर वो तैरता रहेगा बीच में जब तक इसको मोटर डायरेक्शन। सो क्या हुआ कि 2-2.5 साल पहले पेटीएम के इशू आए थे, ये सब टेक कंपनीज के इशू आए थे, Yes, sir. Yes. राइट? बड़ी ओवर वैल्यूएशंस के ऊपर वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई थी, Correct. तो सेबी ने एक नीजर लिया, आईपीओ फाइनेंसिंग बंद। Okay. उसके बाद कि ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होते हैं और लोग, रिटेल इन्वेस्टर इसमें बहुत मर रहा है। तो इंडिया के अंदर बहुत इन्वेस्टर हैं, गुजरात में, इंदौर में, जयपुर में, बम्बई में, जिनका काम ही, जिनकी ब्रेड एंड बटर आईपीओ मार्केट से चलती है, सिर्फ आईपीओ से चलती है। आपकी एप्लीकेशन लगाना, वो मार्केट इन मास एसएमई की तरफ शिफ्ट होनी शुरू हो गई। क्योंकि तब पहले 50 करोड़ लगा के लगाते थे 5,000 करोड़ की एप्लीकेशन, राइट? तो अब क्या हुआ कि इधर क्या छोटे छोटे आईपीओ आते थे, लगा यार एप्लीकेशन देखी जाएगी, क्योंकि काम तो उनका एप्लीकेशन का है, वो कोई और नहीं देखते कुछ भी, उन्हें एप्लीकेशन लगानी है, ग्रे मार्केट देखा, एप्लीकेशन लगाओ, डालो। वहां से क्या हुआ, सडन ब्रश ऑफ लिक्विडिटी आ गया एसएमई मार्केट में। फिर तो क्या होता है, फिर तो मदारी का खेल है, 4 करोड़ जोगी तो 40 आ जाती है, फिर सब देख रहे हैं। फिर अब क्यूआईबी इंस्टीट्यूशंस, तो यानी कि दो साइड्स एंड स्टोरी की एसएमई की। एक तो ये है कि अब एसएमई को क्रिटिकल मास मिलता जा रहा है, एसएमई ऑन इट्स ओन विल ग्रो लाइक नैस्डैक, ठीक है? नैस्डैक
1980s में कुछ नहीं थी, छोटी सी मार्केट थी. आफ्टर दैट एप्पल एंड ऑल सब डिसाइडेड टू लिस्ट ऑन दैट. वहाँ पे ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे लिस्ट करती थी. तो यहाँ पर भी यही होने वाला. इट्स अ नाउ लॉन्ग एंडेड स्टोरी SME. बट देन क्योंकि इर्रेशनल एक्सुबरेंस एंड रोज कंपनियां बनकर आ रही हैं, टू मच होने वाला है, तो डीप करेक्शंस बिल्कुल आने वाली हैं. कुछ कंपनियां उड़ने ही वाली हैं, डेफिनेटली उड़ने वाली. मतलब तो वो प्रमोटर्स हैं ही नहीं उस कैटेगरी के जो लिस्ट हो. वो प्रमोटर्स हैं ही नहीं उस कैटेगरी के. जैसे मैंने अभी आपको मैनेजमेंट क्वालिटी का बताया, वी डिसाइडेड टू एग्जिट बिकॉज वी डिड नॉट थिंक कि दैट प्रमोटर हैज दैट एबिलिटी टू कैरी नाउ दैट बर्डन गोइंग फॉरवर्ड. वहां तक ठीक है भैया, एक होता नहीं यार बस मेरे साथ इतना ही होता है. तो सेम चीज़ प्रमोटर्स का भी होता है, भाई इतना ही कर सकता हूँ मैं. वो स्टेज जानी जरूरी है प्रमोटर की. उसका इंजन वहाँ पे गर्म हो चुका है. सेम चीज़ SME मार्केट का इंजन मेरे हिसाब से पर्सनली, जबकि हमारी ब्रेड एंड बटर SME है, इंजन गर्म हो चुका है. बट क्वालिटी काम चलता रहेगा और पता नहीं कितना और चले, क्योंकि इंडिया की टेलविंड बड़ी स्ट्रांग है. एक एक आदमी इशू क्लोज कर देता है. आज मैं एम श्योर यहाँ पे कोई अराउंड 70, 50, 60 जो लोग बैठे हैं, मतलब 100 स्टॉक तो आप ही चला दोगे इकट्ठे बढ़ जाओ तो, राइट. तो अब ऐसे आप सोच लो इंडिया कितना बड़ा है. तो दिस बूम कुड कंटिन्यू इन अ बिग वे, बट आइडेंटिफाई गुड कंपनीज, दे विल बी बिग लीडर्स ऑफ टुमारो, बिकॉज एवरी सेक्टर के अंदर इंडिया में ग्रोथ आ रही है. Nice. And one more, I want to add in this thing. Himanshu sir, 1 minute. One question, sir, follow-up question on that. Did that SEBI order of ESM in small and micro cap did add fuel to the fire in SMEs? ESM वगैरह क्या कोई लार्जर ट्रेंड को थोड़ा चैलेंज कर सकती हैं. अब ESM वगैरह इवन मेन बोर्ड पे भी स्मॉल कैप्स में शेयर कितने 100 टाइम्स बढ़ चुके हैं ना, Correct. राइट. तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है. वो तो एक टिंकरिंग मैकेनिज्म्स हैं, Okay. राइट. कुकर की गैस निकाली थोड़ी सी फिर कर दी, तो दैट हार्डली मैटर्स इन लॉन्ग रन. Okay, sir. इवन शॉर्ट रन ऑल्सो इट डजंट रियली मैटर. Okay, sir. हाँ, please carry, sir. सरप्राइजिंग है ये आप सबके लिए, मे बी मुझे आइडिया नहीं है, आपको आइडिया है या नहीं. इस इंडेक्स है, जैसे निफ्टी है वैसे ही SME इंडेक्स पे है. इंडेक्स इटसेल्फ बिकम 20x in just 1.5 years. 2.5 year. In just 3 year index become 20x. तो अगर ये है जो सर कह रहे, तो मुझसे तो सर बहुत टाइम से, बॉस तू तो जन्मा ही इस ड्यूरेशन में, बस बेटर है, कहाँ है वो समझ. सो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये SME मार्केट का जो सर ने इंसाइट दिया, और अभी जो बोला कि लार्जर ट्रेंड में क्या होगा नहीं पता, बट अच्छा बिजनेस हमेशा अच्छा करेगा. सो दैट विल बी द की. करेक्ट. आई रिमेंबर लाइक इन गोवा सर ने बहुत प्रोफाउंडली कहा था कि लाइक आवर एम एंड सोल एम एज एन इंस्टीट्यूशन नानोलिया is to be associated with quality businesses and help them, nurture them to grow to that scale where they can realize their true potential. Right. And that was very much visible by ACE example which you gave. So kudos to you guys, because many a times, the means to an end becomes an end in itself. At the end of the day, purpose of living is that you see yourself as a change agent to the betterment of society. The gentleman doctor, he's sitting here, right? As long as he doesn't see himself that he's adding value to society, फिर वो बाकी जो भी कुछ कर रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, वो मीनिंगलेस है. Right? You continue to then develop new models to have, अगर वो ऑब्जेक्टिव है. So we see as a change कि बॉस ये कंपनी बड़ी बड़ी हो सकती है, इसमें दम है, ये तो इसको तो हेल्प चाहिए, करो बेस्ट चीज़ करो, इसके लिए बेस्ट आउटपुट दो. So something like this. That is how we think. So Himanshu sir, you were elaborating upon, I had a long discussion with you regarding how to preserve wealth, at which you specialize, and you had mentioned something very interesting, like ring fencing strategy. How to protect your assets from downturn or any even legal recourse and all. So can you throw some light on that? So for example, हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, राइट. अगर किसी ने कुछ लीगल केस किया या कुछ किया, तो अपनी पर्सनल एसेट भी अटैच हो जाती है. आई थिंक कुछ केसेस आपने देखे होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि चेयरमैन ने एक साइन किया, एक डॉक्यूमेंट साइन किया कि सीवेज क्लीन करा लो ड्यू टू टॉक्सिक एसिड. कुछ लोग वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एक्सपायर कर गए. उस केस में भी उनकी पर्सनल एसेट अटैच हुई. सो अनफोर्सीन इवेंट को कैसे हम बचा सकते हैं, मतलब अपने को कैसे बचा सकते हैं, वो एक पॉइंट है. उसमें 3 पॉइंट हैं जो अंडरस्टैंड करने चाहिए कि क्या अटैच नहीं हो सकता है. आई एम श्योर, मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ. PPF
इन एनी सर्कमस्टांसेस, और गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट करता है. सी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि गवर्नमेंट भी चाहता है कि आपका कुछ पैसा, कुछ चीज़ ऐसी जगह रहे जो अनफोर्सीन इवेंट्स में, ऐसे ऐसे केसेस में वो पैसा अटैच नहीं हो आपकी, राइट? क्योंकि अच्छे टाइम में सब अच्छा अच्छा सोचते हैं, वो पता नहीं चलेगा ना जब ऐसा टाइम आएगा. सो अगर हम ध्यान से देखें, चाहे वो कोई भी, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ बहुत बड़े केसेस भी हुए थे. नाउ दे आर लिविंग इन लंदन एंड एंजॉइंग देयर लाइफ, तो मैं नाम नहीं लूँगा. बट कैसे पॉसिबल है? पैसा तो सब सामने, वो कैसे हुआ? क्यों कहीं अटैच नहीं हुई उनकी मनी? क्या किया था उन लोगों ने? सो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दोज पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज PPF. सेकेंड, आप में से कितने को ये आइडिया कि वुमेन देर इज अ यस, सेकेंड पॉइंट इज दैट वो भी अटैच नहीं होता है. वुमेन इंश्योरेंस पॉलिसी एक्ट, मैरिड वुमेन्स, यस, सो वो भी अटैच नहीं होता है, उनका एसेट साथ में अटैच नहीं होता है. थर्ड, ट्रस्ट, फैमिली ट्रस्ट. सो उन लोगों के पास फैमिली ट्रस्ट था, सारा पैसा फैमिली ट्रस्ट में था, प्रॉपर्टीज फैमिली ट्रस्ट में थी. और वो एक्ट ऐसा एक्ट है 1882 का, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, आज तक उसमें चेंजेस नहीं हुए. आई थिंक अरुण जेटली अगर एक्सपायर नहीं होते तो वो अबॉलिश हो चुका होता. एंड अब भी यस, बिकॉज ही वॉज वेरी अगेंस्ट टू दैट, और अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो गए, तो वो एक्ट आज भी है. सो अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम रिंग फेंस कर सकते हैं अपनी वेल्थ को, क्योंकि वेल्थ कमाना इज ओके, ठीक है, वेल्थ क्रिएट करना ओके, बट ऐसे इवेंट से बचाना भी इज ऑल्सो अ वेरी बिग टास्क. और अगर वो हम अभी नहीं करेंगे ना, तो वी डोंट नो कि वो कब बुरा टाइम आएगा और ये सब ऐसे निकल जाएगा. जैसे स्टॉक का डाउनफॉल आता है, पता नहीं चलता है. ना सेम मैनर रेमंड वाले का एग्जांपल रेमंड इज अ लाइव एग्जांपल. हिमांशु has been repeatedly saying कि हर क्लाइंट को, हर जब भी इंटरेक्शन होता है, अच्छे समय में ही बुरा समय का आप प्लानिंग कर सकते हो. करेक्ट. यू हैव टू डू दैट व्हेन यू आर एट रिसोर्सेज गुड. यू कैनॉट तभी अवेलेबल होंगे प्लानिंग करने के लिए. अच्छा सर, वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, जस्ट इन वन लाइन ईच वन हैज टू रिस्पॉन्ड टू दैट, स्टार्टिंग फ्रॉम यू. व्हाई डू मोस्ट पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट? जस्ट एक लाइन बोलना. अग्रेशन. आप सर? आई थिंक लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, मतलब फियर एंड ग्रीड है ही, वो जो चले आ रहे हैं सेंचुरीज ओल्ड ना, वो तो होते ही हैं. वो फियर, ग्रीड, प्रिपेयर्डनेस. lack of preparedness to any event, able to forecast and build in, कि ये हो सकता है भाई कल, Lack of flexibility मतलब वो पहले से ही बिल्ड इन करके चलो, यू नो, तो आप इजी रहोगे. दैट्स समथिंग वेयर होता क्या है. जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ. आई थिंक 2000, वो कब हुआ था, व्हेन ब्रिटेन वॉकड आउट ऑफ यूरोप, तो उसमें उस दिन क्या हुआ था, मार्केट गिरी बहुत और नीचे से ऊपर आ गई थी सारी की सारी, राइट. तो वो चल तो कितने दिनों से रहा था, तो 80% लोगों ने कहाँ ब्रिटेन जाने वाला है बाहर, वो जो उनका मिनिस्टर, चीफ प्राइम मिनिस्टर था, ही इज़ बेटिंग इज यू नो हिमसेल्फ ऑन दैट, होने नहीं वाला. उसके बावजूद भी हो, यू नो, प्रिपेयर्डनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, यू विल बी, घटेगी भी ना तो ठीक है यार, क्या होने वाला है, 2 दिन बाद ठीक ही होने वाला ना, कोई आउटकम्स तो ऐसे है नहीं ना कि वो हो. लेकिन वो अनसीन का डर, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया, कल के बाद संसार ही नहीं खत्म ना हो जाए. ऐसा से कितने इवेंट्स हुए हैं. राइट. आप सुयोग भाई? I would say one liner you asked. Yes, yes. No clean objective. No, lack of objective. So I would say there is 50% chances of losing money because of lack of monitoring. You don't monitor, you buy, you don't monitor. And that 50%, other 50% is your destiny. You can't avoid it. If you have to lose, you will lose. So that's your destiny. I'd like to add one point on monitoring. So we have tied up with M-Profit. We all know. We recently met the founder of Manish Jain, the founder of M-Profit. In fact, he was supposed to come here, but because of some medical issues in his family, he was not able to come here. So monitoring is important, and we all will be having a session with the founder and his team, how M-Profit should be used, because M-Profit gives you that monitoring tool. Where was I? Because a lot of people don't monitor. Monitoring is very much important, and I think
Himanshu would like to add on this on monitoring. So there are four things. First, I think I'm just concluding that part. Objective should be clear. Like what I need in next 1 year, 3 year, 5 year from my portfolio. So first the objective should be clear. Second, once I'm clear from my objective side, strategy उस objective को meet करने के लिए it should be there. अगर strategy can be up down, अगर strategy में कुछ issue हो रहा है because of फिर third part is implementation and fourth is monitoring. So when you are monitoring the way, see अभी हम एक किसी भी कंपनी का एग्जांपल लें, every quarter we are getting some result from them. हम उनको एनालाइज करते हैं. Are we analyzing our portfolio like that? ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगेन प्रमोटर बोलता है ये सेल इतना जाएगा, these are my objective, टीम आर वर्किंग ऑन दैट, इस स्ट्रेटजी से हम ये अचीव करेंगे सर, और अब इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटजी को, फिर वो क्वार्टरली मॉनिटर करते हैं कि क्या हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं. इफ वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन वी शुड चेंज आवर स्ट्रेटजी. सो अभी मॉनिटरिंग में हमने एक टूल को एज अ कंपनी आई थिंक आई एम श्योर कुछ लोगों को in fact one announcement also I had made for all the accounts above 50 lakh, everyone will be getting access to M Profit with our proprietary some of the tools which we have developed. In our team has connected with them and they develop. We will be taking that session soon. Analytical tool. It will be available for all the accounts above 50 lakh who are with us. And as he said, the manage your portfolio in such a way that you are managing a company, and in company there is PDCA, Plan Do Check Act, Plan Do Check Act. So this is on a broader horizon. Stock picking is a one way inside that whole objective. Okay. So with this, it brings me to the near last question, and that is asking you what circle of competence is and how do you value a stock. But I'm not gonna ask that because फिर आपका गला दर्द कर जाएगा और लोग भी पक जाएंगे. तो नहीं पकेंगे तो नहीं, अगर वैल्यू ढूंढ सकते हैं तो पकेंगे तो नहीं. But हाँ, for the benefit of audience, I would repeat those 4 factors which our esteemed panel has pointed out: aggression, lack of preparedness and flexibility, lack of clear objective, 50% no monitoring, 50% destiny. So with that, ma'am and sirs, I would open the floor for any general question which they have, and I will take an excuse from you guys. It was a pleasure to share the dais with you guys, and thank you. Good orator. I think Mike. Big round of applause for Ravikant, because it was not planned that Ravikant will be asking the questions. He came here, I said that Ravikant you should ask the question. So it was not planned. So big round of applause for him. So any questions from the audience? Hello. Very nice discussion. Eye-opening discussion. अभी मेरा क्वेश्चन है हिमांशु सर से और आंसर चाहता हूँ विपिन सर से. सॉरी सर एक फिर से बताइए. सॉरी नहीं, मेरा क्वेश्चन है हिमांशु से और आंसर चाहता हूँ विपिन सर से. तो जो हिमांशु ने बताया कि 4 असेट क्लास है जहाँ अपना मनी पार्क है सबका, लेकिन वेल्थ तो इक्विटी बनाता है. तो हम अपना माइंडसेट कैसे बनाए कि मेजर पोर्शन इक्विटी में लाए? दैट्स माय क्वेश्चन. ये पूछा उनसे, मतलब आंसर मैं ही कर देता हूं, तो पहली बात तो आई डोंट बिलीव कि इक्विटी बनाता है ये सारी वेल्थ. राइट. मतलब रियल एस्टेट में कितने बड़े टाइकून्स ओवर अ पीरियड टाइम बनते चले गए हैं, राइट? तो प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैव बीन बिल्ट आउट ऑफ रियल एस्टेट. तो आई डोंट थिंक इवन कमोडिटीज, जिम रॉजर्स वाज अ कमोडिटीज किंग, राइट? सो जहाँ पे भी किसी भी एसेट के अंदर इन्फ्लेशन आने का भयंकर चांस हो, वहाँ पे वेल्थ क्रिएशन का चांस है बस. सागर सर, इसमें मैं एक और पॉइंट कहूँगा. सी
जैसे एक बॉडी के लिए 3 टाइम खाना चाहिए होता है ना, पोर्टफोलियो के लिए भी तीनों चारों इंपॉर्टेंट है, राइट मैम? क्योंकि अगर अभी जैसे मयंक का हम सुन रहे थे कमोडिटी, अभी इक्विटी में अगर 100% है, अब रिस्क कैसे मिटिगेट करेंगे आप मुझे बताइए। और सर ने जैसे बोला इन्फ्लेशन आने वाला है, इन्फ्लेशन अगर दूसरे एसेट क्लास में गया तो उस क्लास का बेनिफिट कैसे लेंगे अगर मैं 100% इक्विटी में हूँ? सो अभी for that matter, I'll never buy real estate. So it depends upon choice to choice. There is no right or wrong answer to that. My 90% of my money is in stocks. इवन 99% ऑफ माई मनी इज ऑल्सो इन स्टॉक्स। बट आपने क्वेश्चन क्या पूछा कि वेल्थ इज मेड इन इक्विटीज, कि भाई जिसको जो सूट करता है वो ले ले। मैं तो इतने से लोगों को जानता हूँ जिनकी वेल्थ ही रियल एस्टेट से बनी है, उन्होंने शायद इक्विटीज किसी को दे दिया होगा करने के लिए, वो चीज़ है। प्लस एसेट क्लास भी क्या है, ओवर अ पीरियड टाइम जैसे साइक्लिबिलिटी तो होती है, कभी कमोडिटी चल रही हैं इंक्लूडिंग गोल्ड, कभी वो चल रहा है। एक इमर्जिंग एसेट क्लास है जो अब आने वाली है, बस वो आ रही है, और अब वो होने वाली है मल्टी डिकेड साइकिल कार्बन रिडक्शन एसेट्स की। उसमें आप कुछ भी ब्लैंक बेट्स भी ले सकते हो, वो पैसा बनाएंगे दबा के आने वाले टाइम में। अब वो लेकिन कल लेके परसों डबल हो ऐसा पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं है। कितने मेगा ट्रेंड, वी आर सो लकी टू हैव, एज आई एक्सपेक्टेड व्हाट आई सेड। मैंने हिमांशु को एक ही बोला था, सोर्स ऑफ मेगा ट्रेंड इज विपिन सर, एंड ये इसको कार्बन पे ऐड करना चाहूँगा। कार्बन क्रेडिट, फाइंड द कंपनीज इन कार्बन क्रेडिट। आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सर, so I closely relate to this, and I can build I have that natural circle of competence towards this. I had few, and कुछ कंपनीज आपको इसमें है ना फ्रॉड लगेंगी, है भी और लगेंगी भी, बट उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे ना, बास्केट बनाएंगे 4 5 6 7 8 स्टॉक का, बास्केट में लूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा ट्रेंड है और ये लंबा ट्रेंड है, 10 20 15 20 25 साल जैसे बोले। अब आपको एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्सल करना है। अभी सिर्फ अभी ना पूरी कंट्रीज़ का, मैं कॉप 28 में था, सडनली लास्ट 4 साल से कॉप्स वगैरह बड़ी पॉपुलर हो गई हैं, एटलीस्ट इन्वेस्टिंग फ्रेटर्निटी के अंदर। अभी क्या हो रहा है, सिर्फ एक मैकेनिज्म बचा है जो ये बूम, ऐसा बूम लॉन्च करने वाला है। वो मैकेनिज्म ऐसा है कि कौन सी पुअर कंट्रीज, जैसे अब क्या है, इंडिया बोलता है इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंटी कार्बन, जो डेवलप्ड कंट्री करना चाहती है, लेकिन वहाँ पे साइड पे जाके बोलता है, लेकिन हम हमारे अपने मैकेनिज्म जो हम कर रहे हैं कि भाई तुमने तो डेवलपमेंट के फ्रूट्स ले लिए हैं, अमेरिका ने, यूरोप ने पॉल्यूट कर लिया पहले तुमने, हम तो अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं, मतलब हमारी पोल्यूशन तो नेचुरल है, इंडिया चाइना बिगेस्ट पॉल्यूटर्स, सेम अफ्रीकन कंट्रीज बोलती हैं भाई कैसे करोगे। तो वो जो रिवार्ड सिस्टम फिक्स करना है ना, राइट, जो ट्रांसफर ऑफ वेल्थ होनी है इसकी, वो जिस दिन एक मैकेनिज्म बन गया, बस उसके बाद आप ऐसी क्रिएशन देखोगे, वेल्थ क्रिएशन उन एसेट्स में, कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चन? कंसेप्ट इज नॉट अंडरस्टूड बाय 3 थिंग्स, मेनली अंडरलाइंग 3 थिंग्स है। एक तो सबसे पहले आप ही एफर्ट नहीं कर रहे उसको अंडरस्टैंड करने की, राइट? क्योंकि कई होता है ना, कईयों को सब्जेक्ट नहीं आ रहा पसंद, मैथ्स नहीं आता मुझे समझ में, क्यों नहीं आता भाई, थोड़ा पढ़ तो ले, 2 कदम आगे तो चल ले, ठीक है। 1 सेकंड, लैक ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल ऑन फॉर दिस, कि जिसके लिए आपको डिसीजन बनाना है ना, वो अभी अवेलेबल ही नहीं हो रही आपको, उसके भी कई वो हो सकते हैं। और तीसरा, योर प्री ऑक्यूपेशन विद ऑलरेडी यू आर मेकिंग मनी, सो दैट इज नॉट मोटिवेटिंग यू टू गो टू अ path which are least understood. These are 3 things. Try and reflect upon this, maybe you will find this. One more thing I would like to add. We have ample amount of time. Siddharth will take your presentation, and I'm sharing that because we have ample amount of time. We have covered most of the things, and sir, he has created one presentation on green hydrogen. It is directly related to carbon reduction. So we will be having that presentation today also. So any more questions? माइक
सर आप लोग जिस लेवल पे हो तो आपको मैनेजमेंट का स्टडी करना थोड़ा मिल जाता है परमिशन या रॉ मटेरियल या मीटिंग्स हो जाती है. एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने मैनेजमेंट को कैसे स्टडी करना चाहिए? एक्चुअली इंडिविजुअली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सी व्हेन आई वॉज एज ए इंडिविजुअल मैं कभी मैनेजमेंट को मिल नहीं पाता था. इसीलिए तो ये कम्युनिटी बना रहे हैं ताकि देखो 100 लोगों का मेल के डेट सब लोगों ने शेयर बाय कर लिया, समझ लो, और डिटेल भेज दिया. मैनेजमेंट को आना ही पड़ेगा. सही है ना गलत? तो यू एज ए इंडिविजुअल, क्योंकि वो मेरे साथ भी था, वो मैं 10 साल से प्रॉब्लम फेस किया हूँ. बट सडनली आफ्टर 2020 वी एज अ कम्युनिटी पुट टुगेदर हैज बिकम वन बिग पावर. सो जो भी अच्छा लगता है, कोई भी मैनेजमेंट विदाउट ओनिंग शेयर्स ही विल नॉट लेट यू मीट. सो ओन, और आप मैनेजमेंट को क्यों मिल रहे हो? इंटरेस्टेड हो इसलिए. तो ओन करो एज अ कम्युनिटी, विल राइट अ मेल. सो इट इज़ पॉसिबल, इट बिकम्स पॉसिबल. वो पर्सनली मिलना बहुत डिफिकल्ट है. इट इज़ ऑनेस्ट आंसर. मैम कहना I will like to add to this. So what happens when we started as analysts, तो अभी भी कई बार ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ पर मैनेजमेंट एक्सेस नहीं हो पाता है. So we also face not only as individual investors like you people, but even with TV. तो हमें बहुत easy access कई बार नहीं मिल पाता है क्यों, या अगर ऐसे कर ले हम, चलो मैनेजमेंट से मिलने के लिए कोशिश कर सकते, बट फॉर अ इन्वेस्टर ना तो उस कंपनी के प्रेजेंटेशंस अवेलेबल होते हैं वेबसाइट पे नॉर्मली. तो क्या होता है कि कहते हैं ना कि जब कोई चोर होता है, आप कोई भी मूवी, सस्पेंस मूवी और नॉर्मल कोई भी मूवी, अगर कोई चोर है ना तो वो अपना रुमाल या सिगरेट का कुछ या कुछ ना कुछ वहाँ छोड़ जाएगा, राइट? और कोई ना कोई सुराग, राइट? ही लीव समथिंग, राइट? फॉर मैनेजमेंट व्हाट इज दैट प्लेटफॉर्म, कहाँ छोड़ेगा? सो दैट प्लेटफॉर्म इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो आपको कुछ नहीं करना है एज इंडिविजुअल. मैं कहाँ से मैनेजमेंट से मिलूँ, मैं कहाँ, क्या इतने बड़े लोग, मैनेजमेंट कोई रिप्लाई नहीं करता है. आई अंडरस्टैंड टोटली. सो उसका जो प्लेटफॉर्म है, जो भी वो कुछ कर रहा है, वो किसको सुधारने के लिए कर रहा है? अपने फाइनेंशियल बुक्स को सुधारने के लिए कर रहा है ताकि हम जैसे लोगों को वो अच्छा दिखे, राइट? और इसके कई सारे, अगर आप बहुत ध्यान से उसके एनुअल रिपोर्ट को पढ़ते हैं और 2 एनुअल रिपोर्ट उसके खुद के, जो पिछले साल कहा और जो अभी कहा, आपको वो सुराग बहुत ईजिली मिल जाएगा. एक तो उसके खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और सेकंड अगर क्यूमिंस है, कोई छोटी कंपनी है, कोई ट्रांसफार्मर की कंपनी है, तो उसका एक बड़ा कंपनी का भी बैलेंस शीट पढ़ लो तो आपको पता चल जाएगा कि अरे ये ऐसे रेवेन्यू क्यों चार्ज कर रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई इट इज़ चार्जिंग सो हाई, व्हाई द कॉस्ट आर सो लो. और यू नो देयर आर एम्पल थिंग्स. वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ वन थिंग जहाँ आपने कुछ भी गड़बड़ किया है, आपके कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी, योर ओन, यू नो, आपने केपेक्स किया 100 करोड़ का बता रहे हो, वहाँ जाके देखा तो कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है, राइट? बंजर ज़मीन है. सो ऑल दीज थिंग्स यू विल बी एबल टू सी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई गेट अ लिटिल बिट, यू नो, मुझे थोड़ा आराम हो जाता है. बट इफ़ यू डिग डीप इन टू इट, इट्स नॉट वेरी टफ. कुछ ना कुछ सुराग मिल जाएगा. थैंक यू सो मच. और मैं ऐसे ऐसे इन्वेस्टर्स को जानता हूँ, बिलियंस ऑफ डॉलर की वेल्थ है, वो कहते हैं मैनेजमेंट से मिलना ही नहीं है. नहीं, वो कह रहे हैं मैनेजमेंट से मिलके इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम, और बताएंगे यार 4 मैनेजमेंट से मिला था, शर्ट उतर गई मेरी. विजय केडिया के वीडियो आप देखिए. ही हैज़ लॉस्ट मनी बाय मीटिंग मैनेजमेंट्स. सो देर इज़ नो कंपल्शन कि मैनेजमेंट को मिलने के बाद आप पैसा बनाओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा लार्जेस्ट बेट आज भी, आई हैव नॉट मेट द ट्रिल्स मैनेजमेंट, दैट इज़ माई लार्जेस्ट बेट टुडे. Without meeting management, there is a art of triangulation. I have posted that video in school. How to do that, and it is very simple. It is connecting the dots. You don't need to meet the managements, and there is no need. In fact, Bhavesh is here. He used to always, हाँ yes, SME में important है. SME में compulsion है क्योंकि वहाँ
भूख कितनी है, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट एट दिस स्टेज, बिकॉज जब बेस छोटा होता है ना, आपको प्रमोटर पे बेट लेना है, ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप पकड़ के चलना है, फ्रॉडुलेंट ही है एसएमईज में मैनेजमेंट को मिले बगैर आप डिसीजन लोगे, गलत जाएगा. तो दैट इज़ व्हाट आई थिंक. आई मे एनीथिंग. देखो इवन एसएमए के अंदर भी आप किस किस मैनेजमेंट को मिल लोगे, सबके 2-2 हज़ार शेयर होल्डर होने लग गए हैं अब, राइट. तो उसके पास भी इतना टाइम नहीं होगा. तो उसके लिए जो मर्चेंट बैंकर्स आज काम कर रहे हैं उनको अप्रोच करो आप, राइट. बहुत. और सेफ्टी के लिए आई थिंक कौन लोग लेकर आ रहे हैं मार्केट्स में, कौन, क्योंकि छोटे लोगों को बेसिकली पैटर्नेज चाहिए होती है, तो छोटी कंपनी को पैटर्नेज चाहिए, तो कौन पैटर्नाइज कर रहा है, उसकी क्या रेपुटेशन एट स्टेक पे है, उनको देखो. ऑब्जर्व अदर थिंग्स. सिर्फ एक मैनेजमेंट को ऑब्जर्व थोड़ा करना है, और भी तो चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो. तो जैसे नार्नोलिया है, एंड नार्नोलिया टीम, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट they share research reports, they share management meet con calls, and it will be Himanshu, yes, it will be readily available for all the community members. So just don't to try to reinvent the entire wheel. It is readily available, so it will be available to all. The product जो इसमें मतलब एक बार thought process आप समझ गए, इनका जो कुछ भी products है, thought process है, वो अगर मैच होता है आपके objective के साथ, it is well to go with the product. Then if you don't, because वो उस केस में सिर्फ सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस वाले ही स्टॉक में आप काम करोगे, सब करने की ज़रूरत नहीं है. वाई वी आर क्रिएटिंग अ सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस ग्रुप हियर इज कि उसी में आपका एक्सपर्टीज़ है, बट बाकी का वेल्थ तो प्रोफेशनल ही मैनेज होना चाहिए. मेरा खुद का 60% ऑफ माई मनी, मतलब घर का जो पैसा है, दैट इज़ प्रोफेशनली मैनेज, इवन दो डॉक्टर कैनॉट ऑपरेट ऑन हिज ओन. So I believe there should be 3 compartments. First, professionally manage. Give that money to professional, let him manage. Second, do it through mutual funds. मतलब एक प्रोफेशनली फंड मैनेजर आपको जो थॉट प्रोसेस से लगा इक्विटी में, डायरेक्ट इक्विटी में, दूसरा म्यूचुअल फंड्स में, और तीसरा एक बास्केट आप रखो आपके खुद के लिए. दैट इज व्हाट आई फील. Absolutely right. Through this यहाँ you पे can mitigate risk. अभी एक्चुअली जफर भाई पता नहीं बाहर हैं, अगर उनको 2 मिनट की उनसे भी सुन लोगे ना, वो कोई मैनेजमेंट से कभी नहीं मिलते. और मैं बता रहा हूँ एज ए 100 बैगर्स, उन्होंने मेरे को 1.5 साल पहले फ़ोन करके बोला, MK वेंचर, जो अब MK वेंचर है, 22 रुपये का 23-24 रुपये का स्टॉक था, कहता विपिन ये ले भर ले, फ़ोन करके. तो तब उसका नाम कुछ और था. तो मैंने कहा क्या यार, मतलब उसका क्या था, वो सर्किट भी लग जाता था जल्दी, आ भी गए थे कुछ शेयर्स. वो शेयर आई थिंक 1500 रुपये आज 1.5 साल के अंदर. उसका नाम बाद में चेंज हुआ MK वेंचर्स. वो कोई मैनेजमेंट से नहीं मिलते. ही कीप्स ट्रैक ऑफ द अनाउंसमेंट बीइंग मेड, राइट, ओपन ऑफर्स बीइंग मेड, कौन से प्लेयर्स वो ऑफर कर रहे हैं, उनके अंदर क्या उनकी बैकग्राउंड्स है. अब किसी ने वो आर्टिकल पढ़ा हुआ कि मधु केला वो कंपनी टेक ओवर कर रहा है, उसकी वाइफ के नाम से वो शेयर ले रहा है, तो मधु केला विल नॉट पुट रेपुटेशन एट स्टेक. कोई बड़ी प्लान है उसका. मतलब कई बार इस एंगल से भी आप सोच सकते हो कि कुछ आने वाला बॉस. सर जस्ट कीप द आइज एंड ईयर्स ओपन, दैट इज व्हाट ही इज. सर आप तो 15-20 ईयर्स से मार्केट में हो, सुयोग सर ने, हम जो अभी अपनी कम्युनिटी भी 4-5 साल से बनी है, तो हमने इतने बुल बेयर इतने ज़्यादा नहीं देखे जितने आपने देखे. तो आप जैसे बोलते हो कि वेन एवर यू आर इन अ बुल मार्केट ट्रिगर, आप बोलोगे तो थोड़ा यू सीट ऑन द कैश, तो वो कैसे मैनेज करते हैं, और वो जो सीट ऑन द कैश है वो कैश में रखते हैं या लिक्विड फंड में डालते हैं, कैसे होता है और कौन से पॉइंट पे होता है, वो थोड़ा समझें. सर अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सुयोग ने बोली थी. आउट ऑफ 100 रुपीज़ 20 रुपये मेरे कोर कॉम्पिटेंस में, 80 रुपीज़ तो मेरे पास नहीं है. सो अगर मुझे ये रिस्क दिख रहा है तो मुझसे पहले प्रोफेशनल मैनेजमेंट को दिख रहा है. अगर कैश कॉल लेनी है तो वो लेंगे. अगर मैंने ली, मेरी कैश कॉल का प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो करेक्ट जाएगी, बट उनका ट्रैक, जैसे आपने कहा कि मुझे तो भी 4-5 साल हुए हैं, राइट, बट मैं किसी प्रोफेशनल मैनेजमेंट को अगर अपना मनी देता हूँ, मैं उसको ट्रैक करता हूँ. कितना ट्रैक करता हूँ, कितने ईयर का ट्रैकिंग है, उसका डिटेल है, वो कैश कॉल कब लेता है कब नहीं लेता है, उसके कितने कैश कॉल ठीक गए. तो उस केस में 80% पे तो रिलाई नहीं है. अब आता है 20% पे कि कोर कॉम्पिटेंस पे, वो वाला क्या है. आई थिंक सुयोग उस पर तो मान सकते. इसी का मैं एक्सटेंडेड थोड़ा ये बताऊंगा.
20% में कैश कॉल की ज़रूरत ही नहीं, आप बिजनेस अंडरस्टैंड करते हो. देर इज़ नो नीड ऑफ सेलिंग समथिंग बिकॉज इट इज़ ओवर वैल्यूड. यू कैन कीप ऑन. देखिए राकेश झुंझुनवाला ने अगर टाइटन बेचा होता, यू वुड हैव नॉट बीन सिटिंग एट द. तो बाय समथिंग विच यू कैन होल्ड फॉर 10-15 ईयर्स इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस. इंसिडेंट आपको बताता हूँ. 2008 में क्रैश आया था. ही हैड नो कैश, बट उन्होंने अपना सारा का सारा पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड चार्टर्ड को बैंक को गिरवी रख के 100 करोड़ कैश उठा लिया. राइट, बट ही डिडंट सेल हिज पोर्टफोलियो बिकॉज कन्विक्शन पेड. आपको पता है बॉस, यू हैव बॉट गुड थिंग. राइट, कैश जनरेट करने के तरीके तो और भी बहुत होते हैं. स्टॉक मार्केट से थोड़ा जरूर करना अगर आपकी कन्विक्शन सॉलिड है. राइट, तो कैश जनरेट करने के तो और भी बहुत तरीके होते हैं. प्लस प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स को करो. आप अपने पोर्टफोलियो डिवाइड कर सकते हो. अब तो एक नई एसेट क्लास आ गई है, RIA. तो छोटा इन्वेस्टर भी अब प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट फी को इस्तेमाल कर सकता है. पहले नहीं था इंडिया में. रेगुलर उसकी पूरी एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म बन चुका है. वी आर इंसिडेंटली इंडिया, नार्नोलिया इज द लार्जेस्ट, इनफैक्ट द सेकेंड लार्जेस्ट एडवाइजरी RIA इन द कंट्री. राइट, एम आई करेक्ट? Right. सो सेकेंड लार्जेस्ट. तो इस साल शायद नंबर्स में गेम में आ जाएंगे. तो अब तो बहुत सारे मैकेनिज्म आ ही गए हैं. प्रोफेशनल मनी, आपका पोर्टफोलियो मान लो 1 करोड़ का है, 50 लाख आप दे दो प्रोफेशनल मैनेजर्स को. जो तो थ्रिल है ना खुद मैनेज करने का, ये मारता है आदमी को. राइट, उस थ्रिल को लेते हुए अपने रिस्क को कम करो, वो सोच लो बस, और क्या है. बट सर आपके जो मतलब जो भी PMS है वो भी थोड़ा चर्न करते होंगे, कैश पे बैठते होंगे कि नहीं? हाँ, मैं वो मैडम से ही पूछ. हाँ. सो हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम डिपेंड, सी वी डू गो फॉर कैश एट सर्टेन टाइम्स. ये बहुत बड़ा चैप्टर. सॉरी, नॉट ओनली कैश, इक्विटी टू डेब्ट जैसे, मतलब यू चेंज और कि क्लास चेंज हो. सो देयर आर वेरियस प्रोडक्ट्स सर. इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक्विटी प्रोडक्ट लिया है तो दैट विल बी प्योर एक्विटी एंड देन अकॉर्डिंगली. सो देयर आर वेरियस प्रोडक्ट्स एंड अकॉर्डिंगली आप डेट एक्विटी कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली दैट इज़ मैनेज्ड. कैश रखने के लिए जो हमारा अभी जो थॉट प्रोसेस है, जस्ट मैं थोड़ा डिटेल हो जाएगा, बट देन हम कैश में कब शिफ्ट होते हैं, पर्टिकुलरली फॉर एक्विटी आई कैन टॉक. व्हेन डू वी थिंक कि अब हमें कैश रख लेना चाहिए? व्हेन वी थिंक दैट अ बेयर मार्केट इज़ ऑन वे. राइट, अब जो आपका क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बेयर मार्केट है, हाउ डू आई नो कि अभी कैश चला जाना चाहिए नॉट. सो देयर आर लॉट ऑफ टॉक्स अबाउट इंडिया ग्रोथ स्टोरी. आप लोग सबको सारी बातें पता है. नाउ हाउ डू वी नो कि जो भी हम ग्रोथ की बातें कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा तो बेयर मार्केट आने की संभावना होगी, राइट? या फिर हम ओवर वैल्यूड हो जाएंगे तो बेयर मार्केट आने की संभावना होगी. अगर हम पहला बात लें कि बेयर मार्केट की संभावना ओवर वैल्यूएशन की वजह से हो, तो लास्ट 5 ईयर का CAGR इंडेक्स का 14 से 15% है. Right. लास्ट ईयर हमने 17% रिटर्न एक्विटी से किया है. लास्ट 2 ईयर CAGR 10% है मात्र. एक्विटी में रिटर्न का जो नॉर्मल CAGR है वो है अराउंड 14 to 15% कंसिडरिंग निफ्टी. स्टॉक वाइज या पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं, कोई 18 है, कोई 25% पे है. सो 14% इज़ अ निफ्टी गेन इन द लास्ट 5 ईयर. अगर आप 2008 की बात करें जहाँ से मार्केट क्रैश किया था, दैट टाइम 5 ईयर CAGR वॉज अराउंड 40%. 1 year CAGR was around 70%, right? So 40-50, पहले तो कुछ को बढ़ना होगा तभी गिरेगा, right? तो अभी as of now जब आपको लगे कि 5 year CAGR 50% हो गया है, तो आप alert हो जाइए कि now we need to be cautious, because we have in the last 5 years we have not made, displacement has been 0. 14-15% क्या होता है for equity? It's a very normal thing. सेकेंड, व्हाट आर द फंडामेंटल रीजंस जिसको हम देखें और हमें लगे कि नहीं अब एक बेयर मार्केट इन द ऑफिंग है, राइट? सो यू जस्ट इमेजिन योर ओन फैमिली सिनेरियो. वी आर इन्वेस्टिंग, जितना हमारे ऊपर इन्वेस्ट हुआ, एज पेरेंट्स ने हमारे ऊपर इन्वेस्ट किया, उससे कहीं ज़्यादा हम अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो एज अ फैमिली, बहुत छोटा, एक बड़ा कंट्री की बात ना करें, बहुत छोटे फैमिली में बात करें, तो हम अभी केपेक्स मोड में ही हैं. हम नहीं कह रहे हैं अपने बच्चे को कि तुम अब निकल जाओ, तुम
यूरोप की तरह, यूएस की तरह कि अब तुम 18 साल के हो गए, 14 साल के हो, यू मैनेज योर थिंग. वी आर स्टिल इन्वेस्टिंग इन आवर ओन generations, right, in our own forward. Secondly, you take example of those countries which have gone through these bear phases. Say for instance Brazil. हम लोग पहले बहुत बात करते थे ब्रिक कंट्री, राइट? तो ब्रिक कंट्रीज में क्या है, ब्राज़ील 2006 में अराउंड हमारा जो जीडीपी था दैट वाज ऑलमोस्ट सेम एज ब्राज़ील. बट आफ्टर दैट वी सॉ ब्राज़ील जस्ट उनका जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल गिर गया एंड नाउ दे आर स्ट्रगलिंग विथ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और हमारा जीडीपी फिर भी बढ़ता गया. सो एज फार एज द अंडरलाइंग दैट जीडीपी ग्रोथ इज देयर, जब तक आप में सेल्स ग्रोथ है, फर्स्ट, सेकेंड, जब तक ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री में हो रही है, मतलब आप केपेक्स कर रहे हो, अगर आज आप केपेक्स कर रहे हो मतलब 3 साल आगे की आपने नींव रख दी और ग्रोथ होने की. सेकेंड, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर. बहुत ईजिली नंबर आता है जब आपको लगे कि वो आज के डेट में 30% के करीब है. अगर आपको लगे कि नहीं, उसके न्यूज़ आने लगेंगे, बहुत ह्यू एंड क्राई होगा, आपको पता चलेगा कि नहीं ये 10-12% रह गया है, दैट मीन्स वी आर नॉट इन्वेस्टिंग मोर एज अ कंट्री. That will be a lead indicator to understand कि bear market is in offing. Third, interest rate cycles. Interest rate cycles in India, that has not been very volatile. We are in the range of 6 to 8%. We are inflation countries की क्या हो गई? 14% for US and things like that. For Brazil का अगर हम example लें, there the interest rate डिफर्ड फ्रॉम जो 10-year बॉन्ड यील्ड हम लोग बोलते हैं, वो 0 से 12% का रेंज में घूम रहा था. मतलब आप सोचो कितना इंटरेस्ट रेट में कितनी वोलेटिलिटी थी. बट फॉर इंडिया वी हैव बीन इन अ 6 to 8% रेंज. सो दीज आर द लीड इंडिकेटर्स जहाँ से आपको पता चलेगा कि नो, वी आर इन टू अ मैक्रो स्टेबिलिटी. वंस द स्टेबिलिटी इज देयर एंड कैपिटल फॉर्मेशन इज हैपनिंग, GDP growth can be seen. So the bear market is not touching us right now. So इसलिए क्या होता है ना कि जितनी बार मार्केट गिरता है हमें लगता है हम और इन्वेस्ट करें, तब हम नहीं डरते हैं कि बिकॉज वी नो द फंडामेंटल्स आर इन प्लेस एंड मार्केट विल कीप गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज. 3 to 5% मार्केट गिरता रहेगा. यू इफ यू वांट टू गेट इनटू स्टेप मोड, देन यू कैन ऑलवेज पार्क सम मनी इन दोस फॉल. So that's my understanding. Last I would like to add is bear markets are getting shorter in India, bull markets are getting longer. If you see the trough of each bear market in the past 20 years, ये इतना बड़ा था अगर चार्ट पे अगर देखो, उसके कंपैरिजन में आधा हो गया, उसका आधा हो गया. So we are at that stage that where in fact Japan was in 1980 जिस तरीके से मार्केट बूम हुआ, शायद उसी तरीके का पैटर्न दिख रहा है. आई एम नॉट सेइंग दैट इट विल हैपन, बट बेयर मार्केट्स आर गेटिंग शॉर्टर. दैट इज द बेस्ट थिंग वेयर वी आर टुडे. एनी क्वेश्चंस लास्ट? टी ब्रेक के लिए नहीं, पहले टी ब्रेक. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. प्लीज़ एक बार सभी ज़ोरदार तालियां बजा दीजिएगा हमारी पूरी पैनलशिप के लिए.